जो किताबें मैं लिख रही हूँ उस तरह की किताबें देश में कोई भी नहीं लिख रहा है। डिफेंस पे कई किताबें, मिलिट्री पे कई किताबें, बट मेरी बहुत ही यूनिक वैल्यू की किताबें होती हैं, जैसे फोर्स बिहाइंड द फोर्सेस। दिस इज द बुक बेस्ड ऑन वॉर विडोज। वॉर विडोज जो वो औरतें हैं जिन्होंने देश के लिए अपना पति खो दिया है, तो मैंने उनका राष्ट्र के निर्माण में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। Hi, good evening everyone. My name is Asavari and I welcome you all to the last run-up event of Vidarbha Literary Festival. This evening, we are set to discuss a very special book, Balidan, written by author Swapnil Pandey. This book tells us the tales of India's greatest para-special forces operatives, stories that give us goosebumps, stories that bring tears to our eyes, and stories that make our hearts swell with pride. I would now like to introduce our moderator for this evening, Mr. Sachin Jagirdar. Mr. Sachin Jagirdar is a businessman and secretary of Vidarbha Literary Festival. He is currently the India Program Director at Share Your Strength USA. He unconditionally supports various city-grown organizations. Everyone who's friends with Sachin sir or has even interacted with him knows that he is a big history buff. He knows names, dates, and event timelines by heart. He is always enthusiastic to share his latest discoveries about finer history lessons with everyone. He also has a huge philately collection, probably one of the finest in the country. Besides this, he is a great leader to the team VLF and has a unique vision about organizing a literary festival that's authentic and well thought out. Please put your hands together for our moderator, Mr. Sachin Jagirdar. Wow, I absolutely love the way you clap. Now, I would like to introduce our author, Ms. Swapnil Pandey. Swapnil ma'am is a national best-selling author. Her books, The Force Behind the Forces, published by Penguin Random House, Soldier's Girl, and Love Story of a Commando, published by Westland Publication, are hugely popular in India. And as I said earlier, this evening we are going to discuss her book Balidan, which was published in July this year and has already received immense love from readers across the country. Swapnil ma'am has a streak of adventure to her personality. She is a swimmer, an equestrian, and a trekker who has just done her basic mountaineering course at an altitude of 16,500 feet. She is a mother of two. Her aim is to create positive difference in the society and touch people's heart through her creative energies. Her work instigates patriotism in people's hearts, creates awareness about Indian army life. Her military background adds authenticity to her stories and adds credibility to her work. A lot of young men have joined forces after reading her stories, and young women find their icon in Swapnil ma'am. Her stories are mode of solace for many across the length and breadth of our nation. So, dear readers, I request all of you to please put your hands together for our moderator and our author, Ms. Swapnil Pandey. I request our moderator and our author to please come up on the stage. Over to you, Sachin sir. I'm really looking forward to this enriching conversation. Good evening and welcome all of you. This is a moment of pride in multiple sense that firstly that this is the last run-up session and the season ends here on the monthly sessions as such, and then we move into the annual festival which is scheduled on 27th and 28th of January. At the end of the session, we'll have reveal of about 20 odd authors who are coming in for those 2 days. Please give a very good look at it because they are very, very interesting stories. Couple of them again from the army side. And then we have covered almost every genre in non-fiction that was possible. Coming to the evening, कल का पूरा दिन आपने ट्रैवल में बिताया. आज she is here. Tomorrow the entire day until late night she will be still in traveling. Last week she was at Sahitya Aaj Tak. Next week when we will be planning our holidays to Christmas vacations or maybe New Year vacations, she'll be going to Gulmarg for a skiing course for about 2 weeks.
तो मुझे जब मैंने इनसे बात करी मुझे समझ में आया कि शी इज़ कमिंग फ्रॉम जालंधर. तो इतना कमिटमेंट होने के लिए देयर वुड बी टू थिंग्स. वन इज़ डेफिनेटली द कॉज. And secondly, when I talked to her, she said that I'm coming to this city only because it's in Maharashtra. Welcome, Swapnil. Now you're in Maharashtra. बहुत बहुत शुक्रिया सचिन जी. सबसे पहले नागपुर की जनता को, और men in uniform and women in uniform, I can see them. And NCC cadets, they are my favorite type of audiences because I keep on going to a lot of universities, colleges and events. So NCC cadets मेरे बहुत फेवरेट, दे आर माई मोस्ट फेवरेट टाइप ऑफ यंगस्टर्स. बहुत ही मोटिवेटेड, जोश से भरे हुए यूनिफॉर्म्ड बच्चे होते हैं. एंड मुझे सचिन जी ने बताया कि काफ़ी वेटरन्स जिन्होंने देश को अपनी सेवाएं दी हैं, उनकी वाइफ्स जो हैं, फोर्स बिहाइंड द फोर्सेस, जो मेरा बहुत बड़ा ही मेरे दिल के करीब का टॉपिक है. और मैं खुद भी एक फोर्स बिहाइंड द फोर्सेस का ही फ्रेटर्निटी का पार्ट हूँ. तो बहुत ही मैं बहुत आभारी हूँ आप सभी के लिए, और सचिन जी एंड VLF के लिए मुझे नागपुर बुलाने के लिए. महाराष्ट्र एक्चुअली में मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, तो मेरे लिए ट्रैवल करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, और मैं काफ़ी इवेंट्स करती रहती हूँ. सो ओवर द टाइम आई हैव रियलाइज कि एज आई गो टू द इवेंट्स मेरे वर्ड्स ख़त्म हो जाते हैं, लिखने में थोड़ा मुझे परेशानी होती है, मेरी क्रिएटिव एनर्जीज निकल जाती हैं. सो मैं इस साल से थोड़ा कट डाउन कर रही हूँ इवेंट्स को. बट जब मुझे सचिन जी ने बताया कि नागपुर महाराष्ट्र से हैं ये, और विदर्भ लिटरेरी फेस्टिवल बेसिकली में हम महाराष्ट्र की जनता को करेंगे, तो मैं एक्चुअली तुरंत कन्विंस हो गई. क्योंकि जो महाराष्ट्र है ना, मराठाओं की भूमि है, वीरों की भूमि है. मैं आर्मी बैकग्राउंड से हूँ, और किताबें भी जो मैंने लिखी हैं महाराष्ट्र से काफ़ी कहानियाँ कवर करी हैं मैंने. तो मुझे लगा कि मेरे आने से कम जो लोग नहीं जानते हैं कि आपकी धरती से ही कितने वीर निकले हैं और देश को कितनी सेवाएं दे रहे हैं, तो मुझे ज़रूर आना चाहिए. इसलिए मैं बहुत ही आभारी हूँ और शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे सचिन जी पुश किया. Thank you for coming in. And we were, as Asavari was telling about your profile, so I can imagine that Balidan is your 4th book, and you started writing about 8 years ago. So typically you take about average 2 years to write a book. That means quite some time. And secondly, your book involves a lot of travel. And then you're a horse rider, then you're a swimmer, mountaineering, skiing. How do you manage your time? आप जो मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि मैं इतनी सारी चीज़ें कैसे कर लेती हूँ. एडवेंचर भी है, राइटिंग भी है, बहुत ही ये डिफरेंट जॉनरे की चीज़ें और बहुत ही डिफरेंट टेम्परामेंट की चीज़ें हैं. जब हम राइटिंग की बात करें, लेखनी की बात करते हैं, तो सॉफ्ट चीज़ें हैं, और जब हम हॉर्स राइडिंग की बात करते हैं, छोटे लगती रहती हैं, गिरती रहती हूँ मैं. मेरी घोड़ी का नाम है कुर्जा मेरी पिछली वाली थी. तो उसने मुझे काफ़ी अभी 1 हफ्ते पहले गिराया भी है. बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स किया है मैंने अरुणाचल में 462 किलो. जहाँ ये जो मैन इन यूनिफॉर्म हैं उनको पता होगा कि बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स को हम 3rd डिग्री टॉर्चर से कंपेयर कर सकते हैं. जो फौजी यहाँ बैठे हैं वो हंस भी रहे हैं. इसका आंसर एक्चुअली मेरी लेखनी से और मेरे मातृत्व से जुड़ा हुआ है, मैं कहूँगी. क्योंकि मैंने ओवर द टाइम रियलाइज़ किया है कि मैं लेखनी करती हूँ और मैं बहुत ही मीनिंगफुल किताबें लिखती हूँ. मेरी ऑर्डिनरी बुक्स नहीं हैं. ये किताबें एक बहुत ही डीप आइडियोलॉजी, पेट्रियाटिज़म की, राष्ट्रवाद की आइडियोलॉजीज़ को, विचारधाराओं को प्रोपोगेट करती हैं. जहाँ भी मैं जाती हूँ, हज़ारों बच्चे, ये जैसे बलिदान अभी 1.5 महीने में बेस्ट सेलर हो गई, और तो इतने सारे बच्चों को या इतने सारे लोगों को इम्प्रेशन कर रही हैं. तो अगर मैं एज अ लेखक इन्हांस नहीं करूँगी, मैं ज़िंदगी को एक्सपीरियंस नहीं करूँगी, तो फिर मैं अपने पाठकों को क्या दे सकती हूँ अगर मैं ही ग्रो नहीं कर रही हूँ और स्टैगनेंट हो जाती हूँ एक पर्टिकुलर पोजीशन पे. दूसरी चीज़ कि आई एम अ मदर ऑफ 2. मेरा बेटा 4 साल का है, आवीर नाम है उसका, और बेटी का नाम सावी है. शी इज़ 8 years old. सो अभी हमारे घर में कैसी बातें होती हैं मेरे बच्चों के साथ जब मैं बैठती हूँ. आई एम अ वेरी बेसिक रेगुलर मदर, जैसे यहाँ पे कई मदर्स होंगी. सो वैसी बहुत ही रेगुलर मदर हूँ मैं. और जब हम बैठते हैं तो मेरे बच्चे कैसी बातें करते हैं मुझसे कि मम्मी आईना ने आज कैसे क्या ट्रॉटिंग करी, कैंटर कैसे किया. मेरे बच्चों को पता है कि क्रैम्पॉन क्या होता है, आई सेक्स क्या होता है, रिवर क्रॉसिंग के मेथड्स क्या होते हैं,
और वो देखते हैं कि उनकी मदर सुबह 5 बजे उठती है, 6 बजे तक हॉर्स राइडिंग कर लेती है, जिम जाती है, स्विमिंग करती है, दौड़ती भी है, माउंटेन्स पे जा रही है. सो स्टीरियोटिपिकल माहौल नहीं देना चाहती हूँ मैं अपने बच्चों को, मेरी डॉटर को या सन को. आई डोंट वांट टू टीच देम कि एक मदर का जो रूप होता है वो बहुत ही करुणामय ही होता है और एक दायरे के अंदर होता है. मैं जब मेरी बेटी बड़ी होगी तो शी विल अंडरस्टैंड एज अ होम मेकर दैट as a homemaker she has sky is the limit and she can do anything, she can be anything and she can have it all. While my son will have an understanding because उसने अपनी मदर को देखा है और मेरे हस्बैंड को भी देखा है कि मेरी एब्सेंस में ही इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, ही इज़ अ वेरी बिजी पर्सन एंड येट व्हेन आई एम नॉट देयर, जैसे मैं अभी यहाँ पे हूँ, ही लुक्स आफ्टर एवरीथिंग विदाउट कंप्लेनिंग. आई हैव ट्रेन्ड हिम वेल, आई वुड से दैट. ओवर द टाइम वी हैव कम टू एन अग्रीमेंट लाइक एनी हस्बैंड एंड वाइफ. बट नाउ तो सन हैज़ दिस अंडरस्टैंडिंग कि मदर का या वाइफ का रोल सिर्फ यही नहीं होता है कि घर में वो खाना पका रही हैं, बच्चों का वेट कर रही हैं. सो दैट्स द entire ideology behind all these Lovely. things. And then again, one more thing, it has also to do with fitness. When I grow old in my life, like in my 80s, I want to be a fit person. I want to be able to run, swim and do everything that I want to do as an 80-year-old person. So for that we need to start now. Like I'm a 38-year-old woman and फिटनेस के लिए बहुत मतलब अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना चाहती हूँ, चैलेंजेस लिमिट्स को चैलेंज करना चाहती हूँ. तो हर चीज़ इन्हांस हो रही है. माई लाइफ इज़ ग्रोइंग, घर में भी अच्छा माहौल है. लाइक व्हेन आई एंड माई हस्बैंड सिट टुगेदर वी डोंट टॉक अबाउट कि मौसी जी ने ऐसा कहा या मेरी सासू माँ की कंप्लेन नहीं करती हूँ मैं. वी टॉक अबाउट कि डाइट प्लान क्या होगा इस वीक का, कौन सी वीगान रेसिपीज़ हम ट्राई करें. आप मुझे तो कुछ इशारा नहीं कर रहे हैं. नहीं, एब्सोल्युटली नहीं. बट मैं आप लोगों को, क्योंकि हम सब रेगुलर पीपल हैं, यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जब एक औरत, एक महिला थोड़ा जो भी करती है ना, उसका इम्पैक्ट पूरे घर पे पड़ता है. परिवार के निर्माण पे ही नहीं पड़ता है, सोसाइटी के निर्माण पे पड़ता है, देश के और वर्ल्ड के निर्माण पे भी फर्क पड़ता है. आप देखिए ना कि हम राष्ट्रमाता जीजाबाई, रानी लक्ष्मीबाई, उनके वंशज हैं और मैं एक बहुत ही मॉडर्न मिलेनियल वुमन हूँ. तो पर मैं रूटेड हूँ, तो that's helping me out. And very well said about two Maharashtrian ladies. So we have a couple of stories from Maharashtra, which of course she would not mention right now. We are going to that in the next couple of questions. So that's one of the reasons that you are here, and the people in Maharashtra must know those stories. In fact, let me confess, I mean, before I read the book, I even had no idea about those excellent stories. Now coming to this book in the focus in the evening, for those who may not know that when I picked up this title Balidan, the only meaning I knew of Balidan is sacrifice. I mean, it's synonymous with that. But when I read the book, I realized, I mean, the veterans and the serving officers and cadets may know that Balidan is a badge also. So I had no idea that it's a badge. I think this is the badge on the cover of the book. So tell us about this badge and how it is conferred. Just a bit about it, then we move to the next. आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी बच्चों से. आप में से कितने बच्चों को पता है कि स्पेशल फोर्सेस क्या होती है? कैन यू प्लीज़ रेज योर हैंड्स. स्पेशल फोर्सेस क्या होती है? कुछ हाथ उठे हैं. इंडियन पैरा स्पेशल फोर्सेस. नेवी सील्स कितनों को पता है नेवी सील्स क्या होती है? SAS, मरीन्स. अच्छा, कुछ लोगों को पता है पर बहुत सारे लोगों को नहीं पता है. यही हम पिच इन करते हैं, यही हम चेतना फैलाते हैं और यही हम वो कहानियाँ लेके आते हैं जो मैटर करनी चाहिए. सबसे पहले जैसे आपने पूछा कि बलिदान क्या है, बलिदान का मतलब ही सैक्रिफाइस होता है, त्याग होता है. बट जब हम इंडियन आर्मी की कंटेक्स्ट में बात करते हैं तो बलिदान की आप फोटो देख रहे होंगे ना, डैगर है बलिदान, उस पर इनग्रेव है और एक डैगर है वहाँ पे विंग्स के साथ. सो ये एक इंसिग्निया होता है जो इंडियन आर्मी की इन्फेंट्री की पैराशूट रेजिमेंट की स्पेशल फोर्सेस जो यूनिट्स होती हैं उसके जो पर्सनल होते हैं वो पहनते हैं. मैं बहुत ही सरल भाषा में आपको बता रही हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए अपने देश के बारे में, अपने सैनिकों के बारे में. इंडियन आर्मी इन्फेंट्री पैराशूट रेजिमेंट जो कि
पैराशूट से जुड़े जितने ऑपरेशंस होते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। पैराट्रूपर्स भी बोलते हैं। पैराट्रूपर्स बोलते हैं उनके पर्सनल को। पैराशूट रेजिमेंट के जो पर्सनल होते हैं उनको पैराट्रूपर्स कहते हैं, जो कि पैराशूट ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं। आप देखते भी होंगे पैराट्रूपिंग, स्काई डाइविंग के कई विजुअल्स आ जाते हैं। और उनमें एक पैराट्रूपर जो पैराशूट रेजिमेंट में एक होती हैं स्पेशल फोर्सेस बटालियंस, तो उसके जो पर्सनल होते हैं सिर्फ उनको अलाउड है ये इंसिग्निया पहनने का, बलिदान, बैज ऑफ सैक्रिफाइस। इसको वो इट इज़ टू रिमाइंड देम दैट दे आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड इट्स अ टेस्टामेंट ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, वैलर एंड सुप्रीम सैक्रिफाइस, कि अगर देश की रक्षा में सुप्रीम सैक्रिफाइस भी देना पड़ जाए तो उनको पीछे नहीं हटना है। एंड स्पेशल फोर्सेस फ्लैशेस होते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इनके ऊपर ही बहुत ही हमारे देश की सबसे खौफनाक, खूंखार और खुफिया कोवर्ट फोर्सेस हैं ये। True. तो उनके बारे में लिख लिया मैंने। आई फील एक्चुअली प्रिविलेज बिकॉज पहुंचना ही बहुत मुश्किल होता है I उन agree. तक। So we'll come to that. This is the fourth book that she's written. Before we go to the book, we can't, in fact, avoid talking about the third book that she's written. It's called Force Behind the Forces. There are also again some stories. Frankly, I have not read the book yet. I'll get that book today, Force Behind the Forces. My focus, of course, was on Balidan. And one of the very interesting and most challenging, as I told you, that she needs to travel a lot because she interviews the family members of those who have done their sacrifices and interact with them. It takes about 2 years' time to kind of write a book to get those stories into words. As she told me that one of the most challenging story from the previous book, which is the third in your sequence, Force Behind the Forces, is actually from Maharashtra. And that's why I think it got you clicked when I called you. I'm from Nagpur. So can you share this story for all of us from the previous book, Force Behind the Forces? सचिन जी से जब मेरी बातचीत हो रही थी, जब हम डिस्कस कर रहे थे, तो ही टोल्ड मी अबाउट कि आपकी मोस्ट चैलेंजिंग स्टोरी क्या है लाइफ की। वो मेजर शशिधरन नायर और तृप्ति नायर की कहानी है। मलयाली बाय हार्ट मेजर शशिधरन नायर, वो मलयाली बाय ओरिजिन थे, बट उनकी और उनकी पिछली 7 पीढ़ियाँ पुणे फर्गुसन कॉलेज के प्रोडक्ट थे। वहाँ की पैदाइश हैं वो पुणे के। और तृप्ति नायर भी, शी इज़ तेलुगु बट बोथ ऑफ देम वर मराठी बाय हार्ट, मलयाली एंड तेलुगु बाय ओरिजिन, एंड गुरखा सोल्जर्स को, वो गुरखा ट्रूप्स जो अभी अपने सैम मानेकशॉ मूवी में भी देखा होगा ना, गुरखा बटालियंस, तो गुरखा बटालियंस को कमांड करना बहुत ही फ़ख्र की बात मानी जाती है इंडियन आर्मी में। जितने भी वेटरन्स हैं दिल अग्री विद में, मतलब वो बहुत ही लॉयल होते हैं। और तो वो कमांड करते थे, ही वॉज अ गुरखा ऑफिसर। तो उनके बारे में कहा जाता था कि इज़ अ मलयाली बाई ओरिजिन, मराठी बाई हार्ट, मतलब सो मच सो दैट उनके घर के सारे कल्चर, उनकी शादी भी मराठी कल्चर से हुई। आपकी ज़मीन से निकले हुए ये वीर हैं जिन्होंने देश के लिए अपना लहू बहाया है इन मोस्ट ग्लोरियस मैनर, आई वुड से। बट व्हाट वाज मोस्ट ग्लोरियस अबाउट दिस मैन was, and in fact this particular story, why challenging, because Trupti Nair एक paraplegic person है। Engagement से पहले there was a time when, बहुत ही खूबसूरत सी कहानी है, बट इस कहानी को लिखने में मैं डिप्रेशन में चली गई। मतलब मुझे रात में नाइटमेयर्स आने लगे थे। वाई? बिकॉज तृप्ति एक पैराप्लेजिक पर्सन है और जब भी वो मेजर शशि को याद करती थी तो वो रोती रहती थी। मेजर शशि फॉर अ पैराप्लेजिक हर was just not a husband, but he was the purpose of his life. उसके लाइफ का पर्पस चला गया था। और क्यों गया था? देश के लिए गया था। और मेजर शशिधरन नायर, देखिए आज जिस ज़माने में हम रहते हैं ना, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, दहेज, रंग रूप के नाम पे शादियां टूट जाती हैं। कैसे कैसे खबरें आती हैं आपकी, लिव इन पार्टनर्स को चॉप इन कर दिया है, फ्रिज में डाल दिया, ऐसी कहानियाँ हमारे सामने लाई जाती हैं ना। मैं ऐसी कहानी लेके आई हूँ। किस नैरेटिव को हम चुनते हैं बहुत मैटर करता है। ये वो कहानी है जिसमें इंगेजमेंट से पहले मेजर नायर को पता चल गया था कि वो पैराप्लेजिक हो गई है तृप्ति, और ये कभी चल नहीं पाएगी, परमानेंटली डिसेबल्ड रहेगी। शादी नहीं तोड़े, लड़की वाले कह रहे थे कि आप शादी तोड़ दो, अभी आपकी ये जिम्मेदारी बन जाएगी, बट उन्होंने वो शादी की और बहुत खुशी से की। बहुत ही अच्छे कपल थे
और एक दिन मतलब एक आईडी ब्लास्ट में कश्मीर में उन्होंने 2019 की बात है, ही मेड द सुप्रीम सैक्रिफाइस एंड उनकी माँ भी विधवा थी. टू इमेजिन हमारे बीच में ऐसे लोग हैं, ऐसी कहानियाँ और सच्ची कहानियाँ हैं. उनकी माँ भी देखिए, एक जो सासू माँ का कैसा रूप दिखाते हैं ना टीवी सीरियल्स में, लता आंटी इज़ द पिलर ऑफ दैट फैमिली. जब पैराप्लेजिक है तृप्ति, ये बात पता चली थी मेजर नायर के घर में, तो लता आंटी ने सपोर्ट किया और कहा कि अगर शादी के बाद होता तो हम तो नहीं रिजेक्ट करते, या हमारी बेटी को होता तो नहीं रिजेक्ट करते. और तृप्ति को आज भी वही संभालती हैं, आप ये सोचिए. सो ऐसी माएँ हैं, ऐसी बीवियाँ हैं. और जब ये आईडी ब्लास्ट हुआ था वहाँ पे कश्मीर में, जिसमें उनकी वीर गति को वो प्राप्त हुए थे, तो आगे आईडी था, एक ब्लास्ट पहले हो चुका था, और पीछे जो जेसीओ उनका जो लास्ट वो जो कलश होता है वो लेके आया था, वो रो रहा था, कह रहा था साहब नहीं होते तो हम सब मर जाते. उन्होंने कहा, उनको कॉन्शियसली पता था कि वहाँ पे ब्लास्ट है, और जब वो एक सोल्जर थे तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरे घर में विधवा माँ है, मेरी बहन अनमैरिड है. हम सबकी जिम्मेदारियाँ होती हैं ना, जिम्मेदारियाँ कितनी प्यारी होती हैं हमारे लिए, हम पूरा अपना वजूद उन जिम्मेदारियों पे बेस करते हैं. बट जब एक सैनिक जो यूनिफॉर्म पहनता है उसके लिए देश सर्वप्रथम आता है. तो उन्होंने, और पैराप्लेजिक वाइफ है एंड सोल वही ब्रेड अर्नर थे अपनी फैमिली के. ही सेड कि साहब आप मत जाओ, आगे आईडी है और मुझे जाके चेक करने दो. और ही वेंट देयर एंड वो ब्लास्ट हो गया. सो ये जब कहानी जनवरी में उनकी वीर गति को प्राप्त हुए थे, और मैंने मार्च में आई गेस तृप्ति को अप्रोच किया था, तो उसने पहले मुझे मना कर दिया था कि मैं नहीं बात कर पाऊँगी. बट अगस्त में शी कॉल्ड मी बैक एंड शी सेड कि मैं उसकी यादों को ज़िंदा रखना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि देशवासी इस कहानी को जाने, घर घर तक इनकी कहानी पहुँचनी चाहिए. वो रोती रहती थी और मैं ही बात करते करते आपके सामने रोऊंगी तो विल बी वेरी सैड. सो 1 साल 2 साल उन कहानियों के साथ, उन लोगों के साथ बिताना, इट जस्ट टेक्स टोल ऑन यू, ऑन योर सोल. So does this happen? People don't want to share about their stories? नहीं, मैं एक्चुअली जिस स्केल पे किताबें लिखती हूँ वो बहुत ही बड़े स्केल की किताबें होती हैं. तो हम एक्चुअली, मैं अकेले नहीं लिखती, कुछ 200 लोगों की टीम होती है अलग अलग लेवल्स में. तो हमारा एक लीगल प्रोसेस है, तो ऐसा नहीं कि जो नहीं शेयर करना चाहते हैं तो हम उनकी कहानी लिखते हैं. लेकिन नॉर्मली मुझे लोग, फैमिली वाले ही खुद अप्रोच करते हैं कि हमारे बेटे पे आप कहानी लिखिए, हमारे हस्बैंड पे लिखिए. डू यू गो थ्रू अ प्रोसेस ऑफ क्लियरेंस ऑफ दीज स्टोरीज? और एब्सोल्युटली, बिकॉज ये नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी कहानियां हैं. जैसे बलिदान स्पेशल फोर्सेस है, मेजर शशिधरन नायर, ही वाज अ सोल्जर एंड ही वेंट इन एन आईडी ब्लास्ट. सो एक पूरा प्रोसेस होता है इंडियन आर्मी से क्लियरेंस वगैरह लेने का, जो सर्विंग ऑफिसर्स हैं उनसे बात करने का. तो काफ़ी सारी चीज़ों का, मतलब ये मामूली कहानियाँ नहीं हैं. Absolutely, it's a serious work. और It's a very they are serious very work. serious business, I would say. You're bringing It's just, these sacrifices to the public through these books. That's why I'm asking. A lot of हाँ जी. clearances are required for this. हाँ, this is To the publish the books. यही पहले तो आपको उन लोगों को जो अप्रोच करना है, जिनके आप इंटरव्यूज़ लेना चाहते हैं, अगर वो सर्विंग है तो उनके लिए आपको क्लियरेंस लेनी पड़ती है. फिर वो क्वेश्चन के सेट्स जाते हैं, फिर क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है ये भी डिस्कस होता है. और उसके बाद जब कहानी हम लिख लेते हैं, यूनिट्स को विजिट करने के लिए, जैसे मैं स्पेशल फोर्सेस पे लिखने के लिए, तो आई स्टेड विद द स्पेशल फोर्सेस यूनिट्स एंड ऑल. सो वहाँ पे रुकने के लिए एंड ऑल कई तरह के, मतलब 6-7 महीने तो सिर्फ क्लियरेंसेस में लगते हैं. दिस इज़ द रीज़न कि वाई मतलब 2-2 साल का टाइम लगता है, बिकॉज ये मामूली कहानियाँ नहीं है, बहुत मीनिंगफुल कहानियाँ हैं. एक आइडियोलॉजी को प्रोपोगेट कर रही हैं, और दूसरा ये है कि एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन को ये रिप्रेजेंट करती हैं. सो यू कैन नॉट टेक इट ईजिली, हर कोई नहीं लिख सकता. Yes. So that third book which I mentioned just now, Force Behind the Forces, mostly we'll see a web series out of that book. Still in consideration. I mean, she told me not to disclose, but I mean, it's already in the process. Hopefully, we'll see that very soon. Swapnil, and congrats for that. It's a big leap to make. You know, it will go to a larger audience. You know. Right. So coming back to this book in the focus for the evening, Balidan. So Balidan also talks of stories of valor and sacrifices. Interestingly, here also, one story is from Maharashtra, which is very close to her heart, and you know that is also the reason that she's here. So can we have that from you also? बलिदान में जो एक बहुत बड़ा नाम है, बलिदान का जो टाइटल ही है, स्टोरीज ऑफ ग्रेटेस्ट पैरा स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटिव्स.
सो ये बहुत नामी सोल्जर्स हैं जिन्होंने देश के लिए बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, या बहुत ही एक अलग लेवल का अचीवमेंट लेवल है उनका। उसमें एक नाम है कर्नल संतोष यशवंत महाडिक। आप में से कितने लोगों ने उनका नाम सुना है, कर्नल संतोष यशवंत महाडिक? देखिए इतने हाथ खड़े हो गए। दैट्स अमेजिंग, गुड। और जिन लोगों को नहीं पता है, आज प्लीज़ आप उनका नाम जानिए। दैट इज़ द प्राइम पर्पस वाई आई हैव ट्रैवल्ड सो मच, बिकॉज आपकी धरती के वीर हैं ये रणबांकुरे आपके बीच से निकले हैं। बिल्कुल साधारण लोग हैं जिन्होंने असाधारण काम किया है, आपको पता होना चाहिए। अभी मैं पूछूंगी कि दीपिका पादुकोण के बारे में कितने को पता है, सारे हाथ आ जाएंगे ना। लेकिन देखिए ये जो लेवल ऑफ अवेयरनेस है ना, किस तरह की आइडियोलॉजी को हम प्रोपगेट कर रहे हैं, किस तरह की आइडियोलॉजी को हम सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत मैटर करता है। सो ऐसी कहानियाँ देश के सामने आनी चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए। क्योंकि आप क्या है, दिस वर्ल्ड इज़ अ स्टोरी ना। यहाँ पे बैठे हर इंसान के पास एक कहानी होगी, बट वो कैसी कहानी आती है जनता के सामने, ये बहुत मैटर करता है। शहीद आज़म भगत सिंह, रानी की लक्ष्मीबाई जो हैं, या फिर छत्रपति शिवाजी महाराज, कहानियाँ ही तो हैं और आज भी प्रेरित कर रही हैं। तो ये जो कहानियाँ हैं, कैसी कहानियाँ, एज अ स्टोरी टेलर मुझे लगता है कि ऐसी कहानियाँ लेके आएँ। तो देखिए कर्नल संतोष यशवंत महाडिक की 21 पैरा स्पेशल, वाघ नख ही कहते हैं उनकी यूनिट को, स्पेशल फोर्सेस की, जो उनका जो सेकंड नेम होता है, पॉपुलर नेम जिसको कहते हैं, वो पहली कहानी है। और सतारा डिस्ट्रिक्ट से थे कर्नल संतोष यशवंत महाडिक, एंड बहुत ही साधारण परिवार से थे। कुछ बड़ा करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ जोश, जुनून, जज्बा और डिसिप्लिन चाहिए होता है। वो सबके पास होता है रिगार्डलेस ऑफ द बैकग्राउंड। तो उनके फादर दूध बेचते थे और इनको सैनिक स्कूल में डाल दिया था, वहाँ से ज़िंदगी चेंज हो गई। अब वो 12 साल की उम्र में, आज के हमारे बच्चे यहाँ पे कई जो मदर्स बैठी होंगी, दिल अग्री की जो बच्चे हैं कैसे यूट्यूब के वीडियोस देखते हैं या उनके अलग अलग तरह के आइडॉल्स होते हैं ना। जब वो 12 साल के थे कर्नल संतोष यशवंत महाडिक, तो उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का एक बड़ा ही फेमस किस्सा है जिसमें उन्होंने हिंदावी स्वराज्य के लिए रक्त बहाया था ना, रायरेश्वर टेम्पल में प्लेज किया था। 13 ही वाज। तो 12 साल का लड़का उसको इनैक्ट करता है अपने स्कूल में। दैट इज़ हाउ ही स्टार्टेड। कारगिल के युद्ध में पार्टिसिपेट किया, कॉम्बैट अंडर वाटर डाइवर थे, जो कि उसकी जो प्रोबेशन होती है, ट्रेनिंग होती है, बहुत कठिन मानती है। मतलब वाटर में कुछ भी मार्जिन नहीं होता है एरर का। फिर ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन रक्षक, ऑपरेशन राइनो, देश के कोने कोने में अपनी सेवाएं दी हैं। महाराष्ट्र का लड़का है, सतारा डिस्ट्रिक्ट का, पोगरवाड़ी गांव से, देश के लिए सरहद पे मुस्तैदी से खड़ा रहा है, हर तरह की सेवाएं दी हैं। बहुत ही जोशीला, जाबाज और बहुत ही बहादुर सैनिक। मतलब जब आप किताब पढ़ेंगे ना उनकी कहानी, रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि अच्छा ऐसे लोग भी हैं हमारे बीच में, और ऐसी कहानियाँ क्यों नहीं आती हैं लोगों के बीच में। तो एंड ही फॉल्स इन लव एंड ही गेट्स मैरिड। बिकॉज आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो मेन इन यूनिफॉर्म होते हैं या जो सोल्जर्स होते हैं या वुमेन इन यूनिफॉर्म है, वो भी दे आर ऑल्सो फादर्स, ब्रदर्स, सन्स। उनकी भी बहुत ही रेगुलर लाइफ होती है, बट जब वो यूनिफॉर्म अडॉन करते हैं और फील्ड में जाते हैं तो उनकी बिल्कुल लाइफ और जो ऑरा होती है चेंज हो जाती है। देश प्रथम, देश प्रथम। तो आपको भी ये ध्यान रखना है कि हम ऐसे देश से बिलोंग करते हैं, ऐसे आपके बीच में ही ऐसे भाई हैं जो देश की मिट्टी के लिए अपना लहू बहा रहे हैं, तो हम ऐसा काम ना करें जिससे मिट्टी कलंकित हो। परफेक्ट। सो दिस इज़ द स्टोरी। एंड उनकी भी वीरगति को वो प्राप्त हुए थे। एज अ कमांडिंग ऑफिसर ही वॉज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। जो COs होते हैं यूजुअली प्लानिंग करते हैं, बट ही ऑलवेज लाइक टू लीड हिज ट्रूप्स फ्रॉम द फ्रंट। कुपवाड़ा में बहुत फेमस हैं। इनफैक्ट जो उनकी साइटेशन आई थी उसमें भी मैंने पढ़ा, उनकी जो ऑपरेशन सद्भावना, उनके कश्मीरी फ्रेंड्स थे काफ़ी, शमीम खान है उनका मेंशन है। तो वो बता रहे थे कि कुपवाड़ा की बेटरमेंट के लिए भी उन्होंने काफ़ी काम किया था एज अ CO। एंड उनकी वाइफ स्वाति महाडिक, तो फ्रंट पे एक ऑपरेशन में फ्रंट से लीड करते हुए उन्होंने वीरगति को प्राप्त किया था। उसके बाद उनकी वाइफ ने भी फौज ज्वाइन की। अब आप देखिए कैसी औरतें हैं, इंटरेस्टिंग, कैसी औरतें हैं ना, कि देश के लिए पति को खो दिया है, 2 बच्चे हैं, फिर भी
ये भी तो लव स्टोरीज है ना। देश की सेवा के लिए अपने पति की शहादत को वैल्यू देने के लिए, लेगेसी को बरकरार रखने के लिए उसी यूनिफॉर्म को वो पहनने का मादा रखती हैं। पढ़ी लिखी हैं, पैसों की लोड नहीं है, कुछ भी कर सकती हैं, बट क्योंकि वो लेगेसी उस यूनिफॉर्म के लिए उनका हस्बैंड गया है। सो हमारे देश की ही, हमारे बीच की ऐसी औरतें हैं कि ये लव स्टोरीज भी हैं। स्वाति महाडिक गई, ट्रेनिंग ली, क्लियर किया एग्जाम, और आज की डेट में सर्विंग ऑफिसर हैं। कार्तिकी एंड स्वराज, छत्रपति शिवाजी इनके आइडल थे, कर्नल संतोष यशवंत महाडिक की, तो बेटे का नाम भी उनके ड्रीम पे उन्होंने स्वराज रखा। बहुत ही प्यारी कहानी है। आप बताइएगा अपने आसपास के लोगों को, आप जिस धरती पे बिलोंग करते हैं, वीरों की धरती रही है, मराठाओं की भूमि है। सो अगर आपको अपने बीच के हीरो के बारे में नहीं पता है तो आई थिंक थोड़ी मेहनत करनी है आपको इनके बारे में जानने के लिए। और काफ़ी मेहनत तो आप कर ही रही हैं, आप किताब लिख ही रही हैं। सो विल ऑफ कोर्स कीप रीडिंग दोज बुक्स। सो एक जो तृप्ति नायर का इन्होंने जिक्र किया, एंड देयर इज़ अ रिवर्स लव स्टोरी। तृप्ति और वो जो नायर वाली जो स्टोरी थी, उसी की एक रिवर्स लव स्टोरी है, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, और वो भी इस बलिदान में ही मैंशनड है। वहाँ पे वो पैराप्लेजिक थी और यहाँ पर आई थिंक वो आप प्लीज़ बताइए। हाँ जी, देखिए अभी क्या हो गया ना कि हम ऐसे समाज से बिलोंग करते हैं जो सीताराम, राधा कृष्णा, ऐसी कहानियों, ऐसी लव स्टोरीज़ की धरती है ना। हमारे समाज में, जो भारतीय समाज है, उसमें एक नारी को बड़ा ही संपूर्ण स्थान, बड़ा ही रिस्पेक्टफुल स्थान दिया गया है, और परिवार को भी स्थान दिया गया है, प्रेम को भी स्थान दिया गया। हमारे सारे ग्रंथ आप उठा लीजिए, प्रेम को कितने सुंदर तरीके से परिभाषित करते हैं। बट आज की डेट में मीडिया का नैरेटिव इतना डिसरप्टिव हो गया है, या इंस्टाग्राम का जो एरा आ गया है रील्स का, आप देखिए कि हमारे जो बच्चे हैं, जो यंगस्टर्स हैं, आप खुद से पूछिए कि आप कैसा कंटेंट देखना पसंद करते हैं, और कंटेंट का इतना फ़र्क पड़ता है। अभी मैंने आपको बताया कि जब वो 12 साल के थे, कर्नल संतोष महाडिक, तब उनके जो आइकॉन हुआ करते थे वो छत्रपति शिवाजी महाराज होते थे। तो वो इतने ग्लोरियस वे में गए, छोटी जिंदगी बट बड़ा नाम करके गए हैं। और लव स्टोरीज़ को, समाज को डिस्ट्रॉय करने का काम किया जा रहा है, परिवारों को डिस्ट्रॉय करने का काम किया जा रहा है, बिकॉज एवरी थिंग इज़ अ नैरेटिव। नैरेटिव्स, वर्ड्स आर वेरी पावरफुल, वर्ड्स बिकम योर डेस्टिनी। जिस तरह की चीज़ों को आप सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, वो आपकी किस्मत बन जाती है। आप मुझ पर भरोसा करिए। वो आइडियोलॉजीज़, आप किस तरह की आइडियोलॉजीज़ को प्रोपोगेट कर रहे हैं समाज में, हमारे बच्चों पे स्पेशली बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। परिवार में विश्वास नहीं करते हैं, रिलेशनशिप्स का मजाक उड़ गया है हमारे पास। कैसी, अब आप सीमा हैदर, सबको पता होगा सीमा हैदर के बारे में, क्योंकि आपको इतना दिखाया गया है। क्या है उस सीमा हैदर के नैरेटिव में, उनकी स्टोरी में क्या है? पाकिस्तान से एक लड़की आती है, पता नहीं कैसे कैसे काम कर रहे हैं एंटरटेनमेंट के नाम पे। आप इसको देश के कोने कोने, नागपुर में बैठी हूँ, पंजाब में भी पूछती हूँ, मैं अभी दिल्ली गई थी, सबको पता है उनके बारे में। बट जब मैं बोलूँगी कि आस्था पनवर या मेजर मनीष, जिनकी कहानी, जिनकी चर्चा ये कर रहे हैं, आपको पता है मेजर मनीष 9 पैरा SF से शौर्य चक्र, पता है आप लोगों को? नहीं पता होगा, आपकी गलती नहीं, आपको दिखाया ही नहीं जाता, ये कहानी आपके सामने आती ही नहीं। ये भी लव स्टोरीज है। आपके सामने ये आएगा कि भाई लिव इन पार्टनर्स हैं, गर्लफ्रेंड्स हैं, उनको चॉप कर दिया गया। कितने डिसरप्टिव नैरेटिव है। हर तरह का नैरेटिव आपके बीच मौजूद है, पर आप किन कहानियों को पिक करते हैं, किन आइडियोलॉजीज को प्रोपोगेट करते हैं, ये बहुत मैटर करता है। तो जिस देश से, जिस समाज से हम बिलोंग करते हैं, इस वजह से मैं आस्था पनवर और मेजर मनीष की कहानी लेकर के आई। 9 पैरा SF के हैं वो अगेन एक ऑपरेशन में उनकी स्पाइन पे गोली लग गई थी, तो वो परमानेंटली डिसेबल्ड हो गया, जैसे तृप्ति डिसेबल्ड हो गई थी, एंड इनको भी ये परमानेंटली डिसेबल्ड हैं। एंड इनकी कहानी अगेन, आस्था पुणे टाइम्स में पढ़ती है, वो वर्धा में थी उस टाइम पे, जॉब करती थी। एंड आप विश्वास मानिए, ऐसा होता है, ये सच्ची कहानियाँ हैं। वो पेपर में पढ़ते आस्था को उनसे प्यार हो जाता है। वो कहती है ऐसा सिपाही है। ऐसी भी चीज़ें हमारे बीच में, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पीपल हैं, कि इनके दिमाग में क्या चलता है हम नहीं कह सकते ना। तो हम साइकोस की कहानी को स्थान देते हैं, इसको नहीं देते हैं। तो वो पढ़ते, उसको प्यार हो जाता है, फेसबुक पे अकाउंट बनाती है, एंड इवेंचुअली शी गेट्स मैरिड टू अ परमानेंटली डिसेबल्ड सोल्जर। और बहुत ही ब्यूटीफुल कहानी है। हरतालिका तीज एक व्रत होता है करवा चौथ की, तो उस दिन वो शादी करते हैं, और ऑपरेशन भी बहुत ही हीरोइक तरीके से, उनको गोली लगती है और वो बच जाते हैं।
तो ये कहानियाँ मैं समाज के सामने लेके आने की कोशिश कर रही हूँ कि ये कहानियाँ बच्चों को बतानी चाहिए कि देखिए प्यार का स्थान है, ह्यूमन वैल्यूज़ का एक प्लेस है। हमको ह्यूमन क्या बनाता है, वो ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज़ हमको ह्यूमन बनाते हैं और हमारे समाज को एक नई दिशा देते हैं। तो सही कहानियाँ चूज़ करना, अपने बच्चों को देना बहुत ज़्यादा मैटर करता है। Absolutely. And one more name in Balidan which features in also one of my favorite stories. By the way, जब मैंने वो नाम पहली बार पढ़ा तो मुझे लगा वो महाराष्ट्रियन है. I mean, the name is तुषार महाजन. And I was talking to you about it. So please tell us about तुषार महाजन. Very interesting story. ये बलिदान में जो एक लेखक का कंस्ट्रेन होता है, हम चाह कर भी सबकी कहानियाँ नहीं लिख सकते हैं। जैसे मुझसे कई लोग अभी कहते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू काफ़ी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, तो कहते हैं कि मैम आपने इनकी कहानी क्यों नहीं लिखी, उनकी कहानी। पर क्या होता है ना कि कंस्ट्रेंट्स होते हैं हमारे भी। नेशनल वॉर मेमोरियल में हज़ारों ब्रिक्स हैं, हर एक ब्रिक पे एक कहानी है, पर आप सबकी कहानियाँ नहीं लिख सकते हैं। तो इस कहानी में जो ये 6 कहानियाँ चुनी गई हैं, सबका एक यूनिक वैल्यू है। जैसे आस्था पनवर और मेजर मनीष की कहानी का एक यूनिक वैल्यू है। कैप्टन तुषार महाजन की कहानी का एक अलग वैल्यू है। कर्नल संतोष महाडिक का एक अलग वैल्यू है। ब्रिगेडियर शेखावत का भी इसमें। ब्रिगेडियर सौरभ सिंह शेखावत के बारे में कितने लोग जानते हैं? ओह वाओ। अच्छा, आपकी अच्छी ऑडियंस है, फिर भी काफ़ी लोग जानते हैं। So they worked together, Brigadier Shekhawat and कर्नल Mahadi. वो उनके सीईओ थे। ये आप किताब पढ़ेंगे तो आपको पता Very चलेगा। interesting friendship also and very interesting sacrifice. हाँ जी। ये जो कहानी है, जो कैप्टन तुषार महाजन है, उनकी कहानी मैंने इसलिए चुनी थी क्योंकि सिर्फ 26 साल की उम्र में उन्होंने देश के लिए सुप्रीम सैक्रिफाइस दिया था पंपोर ऑपरेशन में। पंपोर ऑपरेशन इस देश का बहुत बड़ा ऑपरेशन है। आप इसकी तुलना 26/11 से कर सकते हैं, जो मुंबई में ताज अटैक्स हुए थे ना। बिल्डिंग इंटरवेंशन एक्सरसाइजेस कहते हैं, ऑपरेशंस कहते हैं इनको। कहा जाता है कि जो बिल्डिंग इंटरवेंशन ऑपरेशंस होते हैं वो बड़े ही ट्रिकी और बहुत खतरनाक होते हैं, उसमें कैजुअलिटीज़ होती हैं। बिकॉज जंगल में तो फिर भी आपको स्पेस मिल जाता है ना। बिल्डिंग इंटरवेंशन में एक रूम में जाना होता है हमारे सोल्जर्स को, एक ही दरवाज़ा, एक ही खिड़की है जिससे वो एंट्री लेंगे। तो कैजुअलिटीज़ तो होनी है। वो टेररिस्ट, उसको पता है कि मुझे मरना है, पर वो जाने से पहले भी एक गोली तो चला ही देगा, वो बिल्कुल पोजीशन लेके बैठा है। यही हुआ था 26/11 में कि एक छोटी सी टुकड़ी जो टेररिस्ट की थी, लोग कहते हैं कि भाई इतनी छोटी सी टुकड़ी ने कैसे इतना कोहराम मचा दिया, क्योंकि वो बिल्डिंग इंटरवेंशन, उन्होंने बिल्डिंग्स पे कैप्चर्स कर लिया था। तो बिल्डिंग इंटरवेंशन ऑपरेशंस बहुत ही ट्रिकी ऑपरेशंस होते हैं। तो इन्होंने, कैप्टन तुषार महाजन ने 26/11 जैसी घटना बचाई थी अपनी वीरगति दे करके। मतलब किसी भी इंसान के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है, परिवार से भी ऊपर क्या है, उसकी जान। इसीलिए सुप्रीम सैक्रिफाइस कहते हैं, इसीलिए वीर गति कहते हैं। 26 साल का लड़का, उनकी भी गर्लफ्रेंड थी, उनको भी बाइक्स तेज चलाना बहुत पसंद था, उनको डांस करना बहुत पसंद था। आलू भुजिया, हल्दीराम का जो भुजिया होता है, जब जंगल में ना एम्बुश वगैरह लगाते थे तो वो खाते थे, वो भी उनको बहुत पसंद था। टेक्नो म्यूजिक बहुत पसंद था, किताबें बहुत पढ़ते थे। बट देखिए, जो विलक्षण होते हैं, अलग होते हैं ना, कुछ आदतें उनकी अलग होती है। जैसे बलिदान जब मैं लिख रही थी तो 6 के 6 जो ये नाम है ना, मैंने देखा इन सबको किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। जब कैप्टन तुषार महाजन गए और उनका ट्रंक खोला गया तो उस दिन लोगों को रियलाइज़ हुआ कि उनके पास लियो टॉल्स्टॉय, एन फ्रैंक, स्वामी विवेकानंद, इस तरह की जो मीनिंगफुल किताबें हैं उनकी ट्रंक से मिली थी। किंडल रखते थे, किताबें पढ़ने का बहुत शौक होता था। At the age of 26 this is. At the age of 26 उन्होंने सुप्रीम सैक्रिफाइस दिया, बट किताबें वो शुरू से पढ़ते। मेजर मनीष SSB इलाहाबाद के वो किस्से बता रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मुझसे पूछा गया था कि आप कौन सी किताबें पढ़ते हैं, तो मुंशी प्रेमचंद से लेके उन्होंने सारी किताबों का नाम बताया। ब्रिगेडियर शेखावत की चर्चा कर रहे थे। वो टीवी नहीं देखते हैं, वो न्यूज़ भी नहीं देखते हैं, बट वो किताबें पढ़ते हैं। मैं भी, मतलब अभी मैंने सैम बहादुर एक देखी है कई सालों के बाद। अदरवाइज़ मैं भी मूवीज़ नहीं देखती हूँ और वेब सीरीज़ वगैरह मैं नहीं देख पाती हूँ। तो किताबें पढ़ते थे वो, और बहुत ही, जैसे हमारे आजकल 26 साल क्या उम्र होती है, क्या समझ होती है। बट हमारे बीच में ऐसे यंगस्टर्स हैं, कुछ ऐसे यंगस्टर्स हैं जो राइट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, डिसरप्टिव, देश के खिलाफ हथियार उठाते हैं, डिसरप्टिव एक्टिविटीज़ में जिससे देश को नुकसान हो रहा है, वो उस तरफ चले जाए। और कुछ नहीं करते हैं ना, तो सिगरेट पी रहे हैं या गलत तरीके के हैबिट्स में इन्वॉल्व हैं और खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, बिकॉज बहुत ही सेफ एंड शेल्टर्ड जिंदगी बिता रहे हैं। बट आप विश्वास कीजिए,
इसी गैदरिंग में से कुछ ऐसे लोग होंगे ना जो अपना रास्ता बना रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, तो उनकी कहानी युवाओं को बहुत प्रेरणा देती है, बहुत ज़्यादा प्रेरणा देती है। बहुत ही हीरोइक तरीके से गए थे, बिल्डिंग इंटरवेंशन एक्सपर्ट कहलाते थे अपनी यूनिट में, और यूएस नेवी सील्स के साथ उन्होंने कुछ ट्रेनिंग वगैरह ली थी, एंड इसलिए उनको चूज़ भी किया था। JKEDI की बिल्डिंग है जम्मू कश्मीर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंडस्ट्री की, तो वहाँ पे बहुत बड़ी सी बिल्डिंग थी, उस पर टेररिस्ट ने कब्जा कर लिया था, हॉस्टेज सिचुएशन हो गई थी, और उसमें वो बहुत ही, मैंने देखा ना वो बिल्डिंग देखी, वो पूरी रॉकेट से उड़ा दी गई थी बिल्कुल। सो ऐसे ऑपरेशन में एक बम यहाँ ब्लास्ट होगा, हम भाग जाएंगे, बट आप सोचिए कैसे कैसे जुनूनी लोग होते होंगे ना, उस बिल्डिंग में घुसते हैं, टेररिस्ट इनकाउंटर में जाते हैं। छोटी जिंदगियाँ हैं पर बहुत बड़ी जिंदगियाँ हैं। सो ये कहानियाँ, ऐसी कहानियाँ हैं, युवाओं को बहुत पसंद आती है, उनकी फीडबैक बहुत अच्छी आती है। हमको भी पसंद आती है, ऐसी कोई बात नहीं। So, of course, for everybody, it's very inspirational. So, how does this experience for you is interacting with so many people, interviewing them, talking to them? Sometimes, कुछ लोगों को posthumously दिया जाता है, फिर उनकी family से आप बात करते हैं. So, is it how? I mean, it's very sensitive, and then you have to bring it to the public. How? Please share that experience. देखिए, दो पहलू हैं जो आप जो प्रश्न पूछा कि हाउ इज़ द एक्सपीरियंस ऑफ राइटिंग ऑल दीज स्टोरीज। दो पहलू हैं, एक तरफ तो दीज स्टोरीज हैव इन्हांस्ड मी एज अ पर्सन, दे हैव ब्रॉडन माई विजन। जब मैं इन परिवारों से मिली, वीर परिवारों से मिली, कैप्टन तुषार महाजन के पेरेंट्स देवराज अंकल और आशा आंटी, मतलब भरी जवान लड़का खो देना मुझे लगता नहीं है, क्योंकि मैं मिलती रहती हूँ ऐसे लोगों से, इससे बड़ा दुख मुझे लगता नहीं कि हो जाएगा। शादी होने वाली थी, फेब में गए, अप्रैल में उनकी इंगेजमेंट और शादी का प्लान था। आशा आंटी बहुत बार रोती भी थी वो स्टोरी बताने में, बट आज की डेट में उन्होंने एक ट्रस्ट भी खोल रखा है जस्ट टू कैरी फॉरवर्ड कि मेरे बेटा देश की सेवा करता था तो हम भी करेंगे। तो ऐसे ऐसे लोगों से मिल रही हूँ, तो मुझे, आप कह रहे हैं ना हॉर्स राइडिंग जा रही हूँ, माउंटेनिंग, ये आसान चीज़ें नहीं है टू गो बियॉन्ड योर कंफर्ट जोन, बट इन लोगों ने मुझे बड़ा साहस दिया है। फिर मैं बड़े फैंसी लोगों से मिलती हूँ, इतना सीरियस भी नहीं रहता है, जैसे मैं इनके मेस में बैठ के बातें कर रही थी, ब्रिगेडियर शेखावत से मिली, और जैसे कैप्टन तुषार महाजन के जो कॉमरेड्स हैं जो उनके साथ ऑपरेशंस में थे, उन्होंने मुझे सुनाई, तो वो बहुत ही चिल्ड आउट रहते थे। दे आर वेरी डिसिप्लिन्ड पीपल, वेरी रेजिमेंटेड रूटीन, एंड वेरी फोकस्ड अबाउट लाइफ एंड वेरी हार्ड वर्किंग। सो ये ऑल दीज थिंग्स यू ऑब्जर्व एज एन ऑथर, बिकॉज जब तक आप उनके शूज़ में स्टेप इन नहीं करोगे, उनके जैसे महसूस, क्योंकि वो पावर जो मेरी कहानियाँ पढ़ के लोग रो रहे हैं, वो पावर इन्हीं भावनाओं से आती हैं। इट्स नॉट एन आर्टिकल, दीज आर स्टोरीज। सो एक तरफ तो ये मुझे इन्हांस कर रही हैं, मेरी लिमिट्स को क्रॉस करने की मुझे प्रेरणा देती हैं कि जस्ट गो बियॉन्ड योर कंफर्ट जोन, बी अ बेटर पर्सन। एंड आज की डेट में इनके तकलीफ़ें देखने के बाद, और जिस तरह से इन्होंने अपने आप को कैरी फॉरवर्ड किया है, अपने लड़कों को खोने के बाद, अपने हस्बैंड्स को खोने के बाद, इतना ग्रेसफुली अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। सो मुझे लगता है कि कोई दुख नहीं है मेरी ज़िंदगी में, तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है। दूसरी तरफ टू राइट ऑल दी स्टोरीज इज़ वेरी ड्रेनिंग एंड एग्जॉस्टिंग, आई वुड से। जैसे मैंने तृप्ति की बात करी, ये आपको ड्रेन आउट, इट टेक्स टोल ऑन योर सोल, कि आप महीनों उन कहानियों के साथ, उन लोगों के साथ, आप एक घर में एक महीने एक रेंट पे चले जाइए जहाँ कुछ गंभीर माहौल है, you'll change as a person. तो it drains you out, it exhausts you, but देखिए end result बहुत ही amazing है। जो किताबें मैं लिख रही हूँ, उस तरह की किताबें देश में कोई भी नहीं लिख रहा है। डिफेंस पे कई किताबें, मिलिट्री पे कई किताबें, बट मेरी बहुत ही यूनिक वैल्यू की किताबें होती हैं, जैसे फोर्स बिहाइंड द फोर्सेस। दिस इज़ द बुक बेस्ड ऑन वॉर विडोज़। वॉर विडोज़ जो वो औरतें हैं जिन्होंने देश के लिए अपना पति खो दिया है, तो मैंने उनका राष्ट्र के निर्माण में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। तकलीफ तो हुई, 2-3 बार मैंने सोचा कि मैं ड्रॉप कर दूं। मेरे हस्बैंड बीमार हो गए थे, तो मेरे मन में वहम आ गया था कि शायद मैं वॉर विडोज़ की कहानियाँ लिख रही हूँ, तो ऐसा होती है। ये एक पूरी जर्नी है। मैं बच्चों पे बहुत गुस्सा करने लगी थी, और भी बच्चे मेरे छोटे थे। सो इट टेक्स टोल, यू नो। बट अब जब ये कहानियाँ गई, मिसेस मधुलिका रावत का जो अभी एपिसोड हुआ था, तो मीडिया पिक दिस टर्म, द फोर्स बिहाइंड द फोर्सेस। नाउ आर्मी वाइफ्स को एक बहुत अच्छी लाइट में थ्रू दिस बुक देखा जाता है कि भाई इनका भी योगदान है देश के निर्माण में। तो इस किताब से एक अवेयरनेस, यंग बच्चे, उनको समझ में आया कि भाई आर्मी फैमिलीज़ का क्या रोल होता है, या जो यंग वाइफ्स हैं, आर्मी वाइफ्स हैं, मतलब वेलफेयर्स में ये किताब गिफ्ट की जा रही है। बलिदान जो वैलर की किताबें हैं, अब शहीद आज़म भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, हम क्या है वो हमारे लिए कहानियाँ हैं ना, हमें प्रेरित कर रही हैं। आज भी हम उनमें अपनी प्रेरणा ढूंढते हैं। तो मैंने जो कहानियाँ लिख दी हैं, ये 6 कहानियाँ लिख दी हैं,
ये हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए और अभी के यंगस्टर्स के लिए प्रेरणा का ही स्रोत है. मुझे फीडबैक्स आते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे बच्चे पिंग करते हैं या ट्विटर पे बताते हैं कि मैम हमने पढ़ी, मुझे बहुत जोश आया. सो कॉज बहुत अच्छा है, सो आप एफर्ट ले लेते हैं. बट आसान किताबें नहीं हैं, ईजी किताबें नहीं हैं. इनफैक्ट सब्जेक्ट इज वेरी सेंसिटिव, सब्जेक्ट इज एंड जिगरा बहुत बड़ा चाहिए. एंड प्लीज़ रिमेंबर कि मैं भी एक मदर हूँ, मैं भी एक वाइफ हूँ, डॉटर इन लॉ हूँ. और उसके साथ टू राइट ऑल दीज एंड देन टू गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ क्लियरेंसेज, टू मीट एंड कनेक्ट विद द फैमिलीज, टू कन्विंस देम टू टॉक एंड टू गो थ्रू दैट एंटायर इमोशनल प्रोसेस. एंड देन यू नो इट्स ये आसान किताबें नहीं है. कई किताबें आप पढ़ते होंगे, मैं नाम नहीं लूँगी, जैसे ईजी किताबें हैं जो मार्केट में हर तरह की किताबें आपको मिल जाएंगी, तो वो आसान होती हैं लिखना, घर बैठ के लिख दिया. बट ये सब लिखना, इट्स अ स्पिरिचुअल जर्नी ऑल टुगेदर. बट आई वुड से दे हैव इन्हांस्ड मी एज अ पर्सन, दे हैव गिवन मी ग्रोथ. यस. Also, she shared with me that when she did this basic mountaineering course recently, so she was the oldest in that course. So how was that experience of doing that course? Being the oldest? या मैं आई एम 38 years old. और वो जो कोर्स होता है बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स, यहाँ पे कितने लोगों ने कर रखा है? आई एम एक्सपेक्टिंग द आपने कर रखा है एंड आपने भी करा. ये सारे फौजी होंगे आई एम श्योर. ये तो फौजी नहीं है, ये फौजी नहीं है. आप फौजी नहीं है. अच्छा. अब तो ये एक्चुअली आप अग्री करेंगे, इट्स अ 3rd degree कोर्स. और मैंने कहाँ से किया है? मैंने निमास से किया है, अरुणाचल प्रदेश. दैट्स द हाईएस्ट पीक होता है. तो हमने शुरुआत की थी 5000 फीट से. एक्लेमेटाइज करती है बॉडी, बिकॉज जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाते हैं ऑक्सीजन कम होता है, तो चिड़चिड़ापन भी बढ़ता है. बॉडी भी एक्चुअली आपकी एब्सोल्यूट फिट होनी चाहिए, मेंटली फिजिकली तो होनी चाहिए. मेरा मानना है कि स्पिरिचुअली भी फिट होने चाहिए आप, बिकॉज एक टाइम के बाद गाड़ियाँ भी जानी बंद हो गई थी. आपको 20 kg का वो पैक लेके आइस एक्स क्रैम्पॉन के साथ आप चल रहे होते हैं. और मैंने देखा कि जैसे 102 बच्चों ने वो कोर्स शुरू किया था, बट 86 कंप्लीट कर पाए थे, उसमें से एक मैं थी. और 30% ऑफ द कोर्स इंडियन आर्मी की के जो पर्सनल है उनकी थी. स्पेशल फोर्सेस 11 पैरा SF के काफ़ी बंदे आ रखे थे, एयरफोर्स के कुछ थे. सो दे वुड बी बाय द वे माई बिगेस्ट चीयर लीडर. उनको बड़ा अच्छा लगता था कि अच्छा एक फौजी वाइफ है और इतनी सीनियर है और यहाँ पे आके शी इज़ ट्राइंग, तो वो मुझे बहुत बूस्ट करते थे. तो 5000, 10,000, 12,000, 15,000 और 16,500 फीट पे इवेंचुअली मैं गई थी. एक्सीलेंट. तो अगेन उसका पर्पस वही है, टू इन्हांस मुझे काफ़ी चीज़ें पता चली. मुझे नेचर के बारे में पता चला कि नेचर के साथ कनेक्ट करना कितना इम्पॉर्टेंट है. और एक माइंडसेट चेंज होता है, एक रिस्पेक्ट आती है नेचर के लिए. मैंने जो लोकल्स थे उनकी लाइफ को बहुत करीब से देखा. खाना मतलब एक छोटा सा टिफ़िन होता था, आइस कोल्ड वाटर होता था. एंड बहुत 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 टफ लाइफ थी. टेंट्स में हम सोते थे, टेंट्स में बिल्कुल पानी नीचे भर जाता था और सुबह 3 बजे उठ रहे होते थे, आइस आ जाती थी. फिर स्पीड मार्चेस होती थी. मेरा जो वहाँ पे स्पीड मार्चेस होंगी, फिर रनिंग कराएंगे एंड हैवी लोड्स वगैरह लेके. तो मैंने सब कुछ किया. रोज़ सुबह रगड़ा भी तगड़ा होता था. तो यही अगेन बिकॉज मैं ऐसे लोगों से मिल रही हूँ ना. आप देखिए मेजर मनीष, ही इज़ अ पैराप्लेजिक पर्सन, बट ही despite being on the wheels, he's serving his nation. There are no excuses. If you're passionate about something, you will find time for it and you will grow until and unless you grow in a position. मतलब आप मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी पोजीशन पे आ गए हैं, बट अगर आप वहाँ रुक जाते हैं, आप अपने आप को एज एन इंडिविजुअल इन्हांस नहीं करते हैं, यू कैन नॉट गिव बैक टू योर फैमिली, टू सोसाइटी एंड टू नेशन. सो अपनी लिमिट्स को चैलेंज करना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना इज वेरी इंपॉर्टेंट. Lovely. And age is no bar. Age is absolutely no bar. Everything is there in our mind. Because हाँ, जो बाकी बच्चे थे, मैं एल्डेस्ट थी वहाँ पे, बाकी बच्चे वही 20s के एज ग्रुप में थे. लड़कियाँ अगेन बहुत कम होती हैं हर बैच में. 102 के बैच में 10 ही लड़कियाँ थी. मैरिड तो अकेली मैं थी. तो ये भी बहुत टाबू है. मैंने ट्विटर पे एक पोस्ट भी किया था कि मैं जाने से पहले, तो मैंने बताया था कि मैं जा तो रही हूँ आइस एंड कोल्ड में, बट मेरे 2 बच्चों को छोड़ना मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही है. तो देखिए अब समाज भी कैसा है हमारा. औरतों को तो बहुत अच्छा लगा, उन्होंने कहा कि मेरे भी 2 बच्चे हैं, मैं भी बूस्टेड हुई, मैं करना चाहूँगी. बट कुछ लोग हमारे बीच में भी ऐसी माइंडसेट होती है. उन्होंने कहा कि अच्छा बच्चे छोड़ के ये ऐश करने जा रही है, ये घूमने, ये माइंडसेट है. सो जब हमारे जैसे लोग ये करते हैं, बिकॉज मेरा एम है लाइफ में टू ऐड पॉजिटिविटी इन टू पीपल्स लाइफ, टू पुश देम टू डू देयर बेस्ट.
you know, I want to touch people's heart with lot of constructiveness, and I want to push them to do their best, to be their bestest version, constructive things only. So जब हम ऐसा स्टेप लेते हैं, क्योंकि मैं गई, मैंने वो कमेंट्स सुने, वो लिए, एंड उसके बाद मैं वो कोर्स करके कंप्लीट करके आ गई, बिकॉज हर हफ्ते मुझे ये भी लगता था कि मेरी बेइज्जती ना हो जाए, अब तो मैं पक्का निकल जाऊंगी, अब तो मैं पक्का निकल जाऊंगी. बहुत कठिन कोर्स होता है, नहीं होता था. वो रॉक क्लाइंबिंग करा रहे हैं, आइस क्लाइंबिंग में वो 5 kg के क्रैम्पॉन नहीं होते थे, पर मैं पास कर गई, मतलब मैं आ गई. इनफैक्ट ग्रेडिंग भी मेरी अच्छी आई है, अल्फा आई है. वाओ, एक्सीलेंट. देखिए, मैसेज मैं यही दे रही हूँ, जितनी औरतें यहाँ बैठी हैं, स्पेशली जो यंग गर्ल्स बैठी हैं ना, या जो बच्चे, जो लड़के भी बैठे हैं, स्टीरियोटाइप मत करिए. एवरीथिंग इज़ इनसाइड यू, व्हाट यू नीड इज़ इनसाइड यू. आप छोटे छोटे स्टेप लीजिए. मैं वही माउंटेनिंग कोर्स में छोटे छोटे 6 बजे स्टेप लेते तो लगता था नहीं चल पाएंगे, बट हमारे इंस्ट्रक्टर, हमारे उस्ताद हमको कहते थे सिर्फ अपने कदमों को देखो, वो मंजिल मत देखो. छोटे छोटे स्टेप से हम वाकई में बहुत दूर, मतलब 2 बजे तक तो कब 10,000 फीट से 12,000 फीट पे हम पहुंच जाते थे, पता ही नहीं चलता था. तो खुद पे भरोसा अगर आप रख रहे हैं, और स्टीरियोटाइप मत करिए. आप लीडर भी हो सकते हैं, आप होम मेकर भी हो सकते हैं, आप फादर भी हो सकते हैं, आप बहुत बड़े एडवेंचरर भी हो सकते हैं, पैरा ट्रूपर भी हो सकते हैं. इट्स टोटली अप टू कि व्हाट यू बिलीव इन. यू नो, आप अगर होम मेकर हैं, आपके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी है, उसके साथ भी यू कैन हैव ग्राउंड्स बीनीथ योर फीट. You can have some time for yourself. It is very important to have some time for yourself, for your own growth. Because जैसे यहाँ पे जो mothers बैठी हैं, या तो I would like to say कि जब तक आप नहीं grow करेंगे ना, आप अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने समाज को, अपने neighbors को नहीं दे पाएंगे. So हमारी individual responsibility है, हर जिम्मेदारी दूसरों की नहीं है कि पापा करेंगे तो वही कमाएंगे. हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम वो करें जो हम बेस्ट कर सकते हैं. So that is it. We'll open this for the audience, but before that, let me tell you that she's very active on Twitter and other social media. तो अभी हाल फिलहाल में सैम मानेकशॉ कितने लोगों ने देखी है? सैम बहादुर? Oh, that's a good number. मैं when I was booking this tickets for watching this film, हाँ, एनिमल कितने लोगों ने देखी है? So we have a great audience. We have a good audience. So when I was booking the tickets for सैम बहादुर, तो मैंने देखा कि उस ऐप पर सैम बहादुर के खाली 5 या 6 शोज़ दिख रहे थे मुझे, और सैम इसके एनिमल करके कोई फिल्म है, उसके मुझे 15 शोज़ दिख रहे थे. आई वॉज टेकन अ बैक. मैंने कहा ये क्या है. एंड देन स्वप्निल ऑन ट्विटर, आई सी दैट शी इज सेइंग दिस. इन्होंने क्या किया, 2 फोटोज़ डाले, एक सैम बहादुर का ओरिजिनल फोटोग्राफ और बाजू में एक विकी कौशल का फोटो. और आपने क्या लिखा कि मतलब इनका ऐसा कहना था कि शी टुक काइंड ऑफ अ जाइब एट विकी कौशल, एंड शी सेड कि एक बॉलीवुड स्टार ही क्यों ना हो, लेकिन वो एक मैन इन यूनिफॉर्म के साथ कोई उसकी मुकाबला नहीं हो सकता, ऐसा आपने कुछ लिखा. आई थॉट इट वाज अ जाइब एट विकी कौशल, बट देन शी वॉच्ड द फिल्म एंड देन विथ हर किड्स शी टुक अ पिक्चर विथ विकी कौशल्स फोटो एज सैम बहादुर, एंड आई थिंक देन यू प्रेज्ड हिज वर्क, आई गेस. सो ये क्या था? व्हाई डिड यू टेक, वो बेचारे गरीब को क्यों आपने परेशान किया? नहीं मैंने आई डिड नॉट टुक अ डिग ऑन हिम. आई जस्ट मेंट टू से कि देखिए, एक्टर्स क्या है ना, उनका वर्क प्रोफाइल ही उनके लुक्स पे डिपेंड करता है. दे वर्क रियली रियली हार्ड, दे इन्वेस्ट अ लॉट. बट मैंने बस, और वो काफ़ी पॉपुलर, वो दोनों वायरल गए थे वो ट्वीट्स एंड ऑल. सो वो मेरा कहने का बस यही मतलब था, क्योंकि मैं इस फील्ड से जुड़ी हूँ. राइट इन दैट सेंस, आई मीन. हाँ जी, तो मैंने यही कहा था कि भाई कितने भी गुड लुक्स हों, या विकी कौशल जैसे अच्छे गुड लुकिंग भी एक्टर हों, फील्ड मार्शल मानेकशॉ के लुक्स का और ऑरा का मैच नहीं कर सकते हैं. सो उसका कहने का पर्पस यही था कि देखिए, जो एक मैन इन यूनिफॉर्म है, जैसे हमारे सामने यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, उनको देख के उनकी ऑरा अलग हो जाती है. इनफैक्ट जो एनसीसी के बच्चे बैठे हैं, उनकी भी एक यूनिफॉर्म है ना, एनसीसी वाली. सो उनकी एक ऑरा अलग हो जाती है. तो ये आती है सालों के हार्ड वर्क, ब्लड, स्वेट एंड टॉयल से. यू कांट बोरो इट, यू कांट इमिटेट इट. सो मैन इन यूनिफॉर्म की ऑरा अलग है. फिर वो मैंने जो एनिमल की जैसे आप बात कर रहे हैं, तो वो दूसरा वाला ट्वीट इस कंटेक्स्ट में था कि हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है ये कहना कि ये एनिमल मूवी लेके आ गए हैं, समाज को बिगाड़ रहे हैं. और पर हो क्या रहा है ना कि
देखी तो वही जा रही है, पैसे तो वही मूवी बना रही है, और फिर हम ही लोग कंप्लेन करते हैं कि समाज में इतनी प्रॉब्लम क्यों फैल रही है, लड़कियों के साथ इतना गलत क्यों हो रहा है, इतनी मारपीट की घटनाएं, दहेज के कितने लोगों को जला दिया जाता है, ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हम यही तो आइडियोलॉजी प्रोपगेट करें, वी आर टेलिंग आवर चिल्ड्रन दिस इज गुड। तो ये कैसे चेंज होगा? ये तो तभी चेंज होगा ना जब हम सब छोटे छोटे स्टेप लें। हम दूसरा क्या कर रहे हैं नहीं मतलब है, आपको सैम बहादुर को सपोर्ट करिए बिकॉज एक अच्छा कंटेंट है, यू गो वॉच दैट मूवी। जैसे कि अभी सचिन जी से मैं काफ़ी प्रभावित हुई थी, मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि इन्होंने नागपुर में बैठे बैठे पूरे देश से, ये जैसे VLF के थ्रू, ये जो VLF के मेंबर्स हैं, आपके बीच में कितने दूर दूर से कितने तरह तरह के ऑथर्स को, थिंकर्स को, फिलोसफर्स को ला रहे हैं। मूवी स्टार्स को नहीं ला रहे हैं। मूवी स्टार्स क्या सेल करते हैं, उनका क्या ब्रांड वैल्यू है? दे सेल ग्लैमर, दे सेल लाइफस्टाइल, कि भाई ये कपड़े पहनो, ये मेकअप लगाओ। बट जब ये ऑथर्स, मैं क्या लेके आई हूँ, मैं आपके सामने देशभक्ति की कहानियाँ लेके आई हूँ, जोश और जुनून की कहानियाँ लेकर के आई हूँ। सो आपके बीच में भी देखिए ऐसे लोग हैं जो अपना धर्म निभा रहे हैं, अपना फर्ज निभा रहे हैं, और अब आपका काम है कि आप इनको सपोर्ट करें। नागपुर की सारी जनता को यहाँ आना चाहिए, बिल्कुल हाउसफुल होना चाहिए। क्यों कम है? अभी यहाँ पे शायद एक मूवी स्टार होता तो जगह नहीं मिलती। तो ये सोच आपको खुद बदलनी पड़ेगी। आप खुद इनिशिएटिव लीजिए। यहाँ बैठा जो हर बंदा कुछ ना कुछ करने की ताकत रखता है। चूज पॉजिटिव थिंग्स, चूज कंस्ट्रक्टिव थिंग्स, कि सिर्फ परिवार को ही नहीं, समाज को भी बनाए, देश को बनाए, तो वहाँ चेंज क्रिएट होता है। ऑन दैट नोट विल एंड दिस कॉन्वर्सेशन। थैंक यू सो मच स्वप्निल मैम। Yeah, just one announcement. Please ask good questions, and there's a author signed copy will be gifted to the best question. And there are two top jury members who will decide that. We are the two ones. थैंक यू सो मच सचिन सर, स्वप्निल मैम, क्या बात है, बहुत ही अमेजिंग सेशन था। ऐसा लग रहा था कि आप बस कहानियाँ सुनाती रहे और हम बस सुनते रहे और ये सेशन ख़त्म ही ना हो। आपकी कहानियाँ सुनकर मुझे माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविता याद आ गई, जिसका नाम है पुष्प की अभिलाषा। चाह नहीं मैं सुरबाल आके गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं मैं सुरबाल आके गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं मैं प्रेमी माला में बिंध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं मैं देवों के शीश चढ़ूं और भाग्य पर इठलाऊं, चाह नहीं मैं सम्राटों के शवों पर हे हरि डाला जाऊं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाए वीर अनेक, जिस पथ जाए वीर अनेक। स्वप्निल मैम, मुझे लगता है आपकी किताब, आपका ये इंटरव्यू वो अभिलाषा हम सब में जगाने का काम कर रही है। सो हम आपको झुककर सजदा करते हैं, आपके इस काम को शत शत प्रणाम नमन करते हैं। मे यू कीप राइटिंग, मे यू कीप ग्रोइंग एज अ पर्सन, एंड मे वी कीप विटनेसिंग दैट जर्नी विथ यू। तो ऑडियंस, आपकी बारी आ गई है। यस, Can you hear me? Good evening. I am Colonel Ravi Deshmukh, ex-Army. I have not read your book, but stories appear very inspiring. I'm not trying for that best question award. But I have a serious question to ask. Your stories are most inspiring, but everywhere you see the hero dying. Because you have given the name Balidan, therefore you are making it appear that Balidan is the greatest thing to happen. Quoting Patton, we don't get paid to die. We get paid to kill our enemy. For every story where the hero dies, there are 100 stories where large number of soldiers have done their job, killed effectively and retired gracefully. The stories are as motivating as they could be. But possibly while writing a book, Balidan appears a little, touches some emotional chord. That's why you've gone for it, possibly. I'm not sure. Why I'm saying this is because there are a large number of NCC cadets here. Many of them may be aspirants to join the forces. They should not get away with the impression that you go to the army and get killed. They should go with the aim to kill.
The latest example of what is happening in Israel and Hamas is a case in point. Go there and kill people. Thank you. See, अब आपका वैसे प्रश्न तो मुझे नहीं समझ आया, बट जो आपका स्टेटमेंट है, बलिदान स्पेशल फोर्सेस का इंसिग्निया है, इसलिए इस किताब का नाम बलिदान है, और इसमें ब्रिगेडियर सौरभ शेखावत सर्विंग ऑफिसर हैं, उनका है. And to write about martyrs is not about glorifying deaths. It's about honoring their memory की public memory से उनकी जो गाथाएं हैं वो नहीं जानी चाहिए. जैसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज हैं या फिर आपके शहीद आज़म भगत सिंह हैं, उनकी कहानियाँ चलती रहनी चाहिए जनरेशन आफ्टर जनरेशन. That is the purpose of the book. But in army there is no word like martyr. हाँ, absolutely. It is called killed in action. Killed in action, Veer Brave That Hearts. is all. जी, absolutely. Some people survive, some people get killed in action. That's Killed all. in action, absolutely. नहीं, हाँ हाँ जी, बिल्कुल. Next question. Anybody from this side? Our students? Yeah, okay. Yeah, good evening, ma'am. The basic purpose of you writing these books, I believe, is to motivate and let people know what is constructive and what is to be, for younger kids to lead a good path in life. I believe that when you are doing this, a support, don't take it otherwise, support from the family like husband, kids, family, and friends is utter important, which probably many of the ladies don't get in our society. Depends on how conservative and how open they are. So why don't you write, my question is, why don't you write on basic this, because this will infuse a proper training of kids and whatever your intention, probably. That is what I feel. So my question is that, don't you think this is more important than how that family, how that camaraderie should happen between the family, what should be taken care of, what should be avoided? That should also be an integral part of your writings, so that these types of family values get inculcated and in turn this motivation and happen on its own as well, apart from reading your stories. Hope you understand my question. जी, मैं कोशिश कर रही हूँ आपका क्वेश्चन समझने का. जो मुझे समझ आया, आपने कह रहे हैं कि मैं फैमिली वैल्यूज़ पे मुझे थोड़ा लिखना चाहिए, उन लेडीज़ के बारे में जिनको इतना सपोर्ट नहीं है फिर भी वो कुछ करने की कोशिश कर रही हैं. तो देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि मैं डिफेंस ऑथर हूँ, मैं मिलिट्री बेस्ड किताबें ही लिखती हूँ, उसकी ही मुझे समझ है. जो आप टॉपिक कह रहे हैं विमेन एम्पावरमेंट या फेमिनिज्म से रिलेटेड या औरतों की को जगाने की, उससे रिलेटेड काफ़ी बातें मैंने की हैं. मैं अपनी ज़िंदगी में ही पहले तो कोशिश कर रही हूँ वो चीज़ें, वो चेंज लाने की. मैंने बताया कि मैं जो काम कर रही हूँ उसका पर्पस ये है कि मेरे खुद के बच्चे इस चेंज को, वो स्टीरियोटिपिकल रोल को समझें. और मैंने सिर्फ अच्छी बातें कही हैं, चैलेंजेस मुझे भी काफ़ी फेस करने पड़े हैं अपनी लाइफ में. और आई टॉक्ड अबाउट ट्रेनिंग माय हस्बैंड एंड ऑल की ओवर द टाइम. सो द आइडिया इज़ विमेन एम्पावरमेंट और फेमिनिज्म से रिलेटेड काफ़ी किताबें हैं और काफ़ी लोग लिख रहे हैं. वैसी किताबें आप अगर इंटरेस्ट है तो आप पढ़ सकते हैं. बट मैं क्योंकि एक फीमेल ऑथर हूँ, तो मैं खुद ही, मेरी हर किताब में, बलिदान इज़ अ फुल ऑफ एड्रेनलिन बुक, फुल ऑफ एक्शन, एडवेंचर, स्पेशल फोर्सेस, उस पे बेस्ड ये किताब है. बट फिर भी इसमें भी मैंने स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटिव्स की जो मदर्स हैं, फादर्स हैं, आपने किताब नहीं पढ़ी है, उनकी वाइफ्स हैं, उनका रोल बहुत बखूबी दिखाया है. फोर्स बिहाइंड द फोर्सेस तो मैंने पूरी वो किताबें लिख दी है लेडीज़ के ऊपर. दे वर नेवर मैंशनड. वॉर विडोज़ का नेशनल बिल्डिंग में, नेशन बिल्डिंग में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, वो देश के लिए क्या खो रही हैं और वो अपनी ज़िंदगी कैसे लीड करती हैं, उस पर तो मैंने खैर पूरी किताब लिख दी है. तो कोशिश हमारी पूरी रहती है. आइडिया आपका बहुत अच्छा है, सोच बहुत अच्छी है आपकी. शुक्रिया. Hello. You motivated in a very nice way to everyone, because this young generation is sitting here and motivation is absolutely needed for this young generation. I just want to ask one question to you. When did you start writing? The first book when you wrote, but at what age you started writing, and what motivated you to write these type of books? I mean, only for the forces, as you just mentioned that you were writing only for the forces, and what is that motivation for that?
बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है और मैं हैरान हूँ सचिन जी ने मुझसे ये सवाल नहीं पूछा, क्योंकि मैं जहाँ जाती हूँ मुझसे मेरी राइटिंग जर्नी के बारे में सबसे पहले पूछा जाता है कि आपने कैसे शुरुआत की। देखिए, मैं डेस्टिनी बेस्ड ऑथर हूँ। मैं बिट्स मिश्रा की प्रोडक्ट हूँ। विप्रो, HDFC जैसे जगहों पे काम किया है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है, आर्मी स्कूल में भी पढ़ाया है। तो आई नेवर न्यू दैट आई कुड बी एन ऑथर। मेरी एज अभी 38 ईयर्स हो रही है, मेरी बेटी 8 साल की है। जब वो बॉर्न हुई थी ना, एग्जैक्टली आई वॉज अ न्यू मदर। जैसे आप स्ट्रगल्स की बात कर रहे हैं, तो मैं वही कह रही थी कि अगर आपको समाज बदलना है, दूसरे से नहीं अपेक्षा करनी है, आप खुद क्या चेंज ला रहे हैं। जैसे आपने बात करी, बहुत अच्छा टॉपिक बताया इन्होंने। यू कैन स्टार्ट द चेंज दैट यू वॉन्ट, यू कैन स्टार्ट राइटिंग ऑन थिंग्स। तो वही जब मैं 30 साल की थी, क्योंकि अपने एज बोला, और मेरी बेटी तुरंत बॉर्न हुई थी, तो मैं एक डेस्टिनी बेस्ड ऑथर हूँ। मैंने पहली किताब तब लिखी थी, अगेन उसका भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा किस्सा है। क्यों लिखा था मैंने, वो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। बट जब मैंने वो सोल्जर्स गर्ल लिखी थी, मार्केट में आ गई, पब्लिश भी हो गई, मतलब और साल भर के भीतर मुझे अनुराग बासु एक मूवी डायरेक्टर हैं, मैं बहुत ही नॉर्मल होम मेकर थी, मुझे आइडिया नहीं था कि मेरी कहानियाँ इतनी पावरफुल हैं। बट जब उनका कॉल आया, उन्होंने कहा कि मैं मूवी बनाना चाहता हूँ सोल्जर्स गर्ल पे। उन्होंने मूवी कभी नहीं बनाई, 3 महीने के बाद फ़ोन उठाना भी बंद कर दिया मेरा। बट उन्होंने मुझे बोला था कि मैंने वो किताब पढ़ी थी। मूवी वालों की टीम्स होती हैं, प्री प्रोडक्शन टीम, पोस्ट प्रोडक्शन टीम्स होती है, वो नहीं पढ़ते हैं डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स किताबें। बट मेरी किताब उन्हें बताया था कि उन्होंने पढ़ी, तो मुझे एक कॉन्फिडेंस आया कि पहली पेज से ही अगर वो उनको मज़ा नहीं आता, दूसरी पेज पे नहीं जाते। उन्होंने पूरी किताब 4 घंटे की है, ख़त्म की। सो मैं दूसरी लेकर के आई, लव स्टोरी ऑफ अ कमांडो। और व्हेन यू आर ऑन अ पाथ, जब आपकी डेस्टिनी को आपको जहाँ खींच के ले जाना, आज आपके बीच में बैठी हूँ मैं, वो आपको खींच के ले जाएगी। इंटेंट सही रखना है, हार्ट में प्योरिटी होनी चाहिए। मैंने बहुत कुछ प्लान कभी भी नहीं किया, आज भी मैं प्लान नहीं करती हूँ, आज भी मैं बहुत ऑर्गेनिकली लिखती हूँ। जनता की पसंद के हिसाब से नहीं लिखती हूँ, मैं वो लिखती हूँ जो मुझे ज़रूरी लगता है कि ये बिक रहा है इसलिए मैं लिखूंगी। बलिदान बिक रही है इसलिए बलिदान 1, 2 लेके आऊँगी, नहीं करूँगी मैं। जो मुझे पसंद आएगा वो लिखूंगी। तो लव स्टोरी ऑफ अ कमांडो मेरी सेकेंड बुक थी, फिक्शन थी दोनों, वो लेके आई, किसी ने पब्लिश नहीं की, 26-27 पब्लिशर्स को भेजा था। बट वेन यू आर ऑन अ पाथ, वेन यू आर डेस्टिन्ड फॉर थिंग्स, इट विल हैपन टू यू। मैंने सेल्फ पब्लिश की, हर फेज़ देखा है मैंने पब्लिशिंग का। स्ट्रगल्स मेरे बहुत हार्ड रहे, और दोनों किताबें मैंने तब की हैं जब एक मदर से ही पूछे, एक बच्चा संभालना, न्यू बॉर्न मदर, कितना मुश्किल काम होता है। उसके बीच में किताब लिखना इज़ योर सेकेंड बेबी, उसको पब्लिश करना बहुत डिफ़िकल्ट काम होते हैं, तो वो किए हैं मैंने। तो मार्केट में आई और महीने भर के भीतर वो बेस्ट सेलर हो गई, बिकॉज मुझे पता नहीं चला था, बहुत सारे लोगों ने सोल्जर्स गर्ल पढ़ी थी, वही मेरे रीडर्स थे। फिर वो इतनी ज़्यादा बिकी कि उसको वेस्टलैंड अमेजोन ने अक्वायर कर लिया। इट्स एन इंटरनेशनल पब्लिशिंग हाउस, एंड देन रेस्ट इज़ हिस्ट्री। मिसेस मधुलिका रावत ने मेरी सेकंड बुक लॉन्च की थी। हालांकि जो मेन स्ट्रीम में जो मैं कहूँगी जो शब्दों की ताकत का मुझे जो अंदाज़ा हुआ, वो थर्ड बुक फोर्स बिहाइंड द फोर्सेस से हुआ। वहाँ पे कुछ वीर नारियाँ आई थी मेरे बुक लॉन्च पे। दे सेड कि आपने तो फिक्शन लिखी हैं, अब आप हमारी भी कहानियाँ, मतलब लव स्टोरी आपने आर्मी गर्लफ्रेंड्स के ऊपर लिखा है, हमारे ऊपर भी लिखो। तो बस ऐसे शुरू हुआ। बट जब वो किताब आई, द चेंज वॉज ट्रेमेंडस। आई वॉज इन्वाइटेड टू ऑलमोस्ट एवरी स्टूडियो इन दिस नेशन। मेरा पहला इंटरव्यू था, मुझे याद है, TV9 भारतवर्ष के साथ। बट दे हैव अ नैक ऑफ नोइंग अबाउट द न्यूज़, और मुझे लगा था कि ख़त्म हो जाएगा। बट समहाउ जैसे वो इंटरव्यू ख़त्म हुआ, मुझे न्यूज़ 24 से कॉल आ गया, और बहुत सारे मतलब चैनल्स का कॉल आ गया। रात के 10 बजे तक मैं इंटरव्यू ही दे रही थी। एंड लोगों को समझ आई, एक जागृति आई कि फोर्स बिहाइंड द फोर्सेस क्या आता है। फिर ये बलिदान आई है, 1.5 महीने के भीतर बेस्ट सेलिंग टैग जो होता है ना, नेशनल बेस्ट सेलिंग का मतलब लोग वाकई, आप एक होता है आप किताब लिख दीजिए और 5 लोग भी नहीं पढ़ रहे हैं, ये ना चाहे कितनी भी अच्छी किताब। एक होता है कि लोग वाकई पैसे दे के आपकी किताब पढ़ रहे हैं। तो नेशनल बेस्ट सेलिंग का किताब 1.5 महीने के भीतर मिल गया। तो आई एम अ डेस्टिनी बेस्ड ऑथर, मतलब बस चल रही हूँ मैं, और ईश्वर पे भरोसा। फेथ इज ऑलवेज बिगर इन माई हार्ट देन फियर। तो दैट्स व्हाट। या I would like to ask you a question, ma'am. When were you really inspired in school? Tell us something about your school and college. So when did you write something in the school first? Did you write anything? हाँ जी मैम। That inspired you perhaps? Just tell us. हाँ, ऐसा सवाल मुझसे कभी किसी ने नहीं पूछा है। आप सही कह रहे हैं। एक्चुअली मैं शायद बचपन में भी लिखती थी। मैं डेस्टिनी बेस्ड तो हूँ और मैं लिख सकती हूँ, नहीं मुझे आइडिया नहीं था। बट बचपन में हमारे टाइम पे वो चलती थी, नंदन, चंपक, ऐसी किताबें आती थी, बाल भारती, मुझे याद है, मैं 90s किड हूँ। तो उसमें मैं कहानियाँ लिख के भेजती थी, कभी पब्लिश नहीं होती थी।
बट राइटिंग का एक मैं बिहारी बैकग्राउंड से हूँ, हमारे यहाँ सब, मेरे फादर डिस्ट्रिक्ट जज रिटायर हुए हैं, तो हमारे यहाँ सब पढ़ने लिखने वालों का थोड़ा माहौल है, तो थोड़े इंस्पिरेशन तो थी वहाँ से, कहीं ना कहीं था खून में, मुझे लगता है, तो इट इवेंचुअली मैनिफेस्टेड इनटू मी बीइंग एन ऑथर, आई वुड से. So after graduation, you started writing, or just after marriage when the child was born? Then after a long time after my marriage, destiny based, soldiers girl, मतलब कुछ हुआ मेरे साथ कि मैं ऐसे ही मैंने लिख दी थी किताब, मुझे नहीं पता था, वो पहली किताब लिख के ना मैं शांत हो जाती, मुझे नहीं लिखनी थी किताबें. बट देखिए वही मैं कह रही हूँ कि अगर ईश्वर को आपको जहाँ लेके जाना है वो लेके जाएंगे. वो चाहते थे कि कोई तो लिखे इस फटर्निटी से, जो इस फटर्निटी से बिलोंग करता है, ये कहानियाँ अगर मैं नहीं लिखती तो वॉर विडोज, फोर्स बिहाइंड द फोर्सेस कौन लिखता, बलिदान कौन लेके आता अगर मैं नहीं लिखती तो ईश्वर को शायद मालूम था. एंड सोल्जर्स गर्ल, अगर आप सपोज करिए कि मुझे अनुराग बासु का फ़ोन नहीं आता तो मैंने लिख ली थी एक किताब, मैं बहुत खुश रहती. फिर लव स्टोरी फॉर कमांडो अगर अक्वायर नहीं होती वेस्टलैंड पब्लिशिंग हाउस से, बिकॉज व्हेन यू आर अक्वायर्ड यू हैव अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज नाउ द एंटायर नेटवर्क्स कम्स ओवर यू, यू हैव एन PR टीम दी जाती है आपको, आप कहीं जाते हैं वो गाड़ियाँ भिजवाते हैं, एंड दे इन्वेस्ट अ लॉट ऑन देयर गुड ऑथर्स. सो इतनी चीज़ें आपके ऊपर हो रही. मेरे 5 एडिटर्स ने एक किताब पे काम किया, उनकी सैलरी आप काउंट कर लीजिए. देयर आर सेल्स टीम विच ऑर्गेनाइजेज द बुक्स एंड एवरीथिंग, दे कीप अ ट्रैक. सो नाउ यू आर पार्ट ऑफ द बिग बिजनेस, तो दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ देयर. तो वो अक्वायर हो गई तो मैं नहीं करती. उसके बाद शायद उसको भी लिख के मैं शांत हो जाती कि चलो 2 किताबें लिख लूँ, बिकॉज बहुत टैक्सिंग है. इट्स टेकिंग टोल ऑन माई पर्सनल लाइफ ऑल्सो ना, जैसे बताया घर से बाहर रहती हूँ एंड बहुत सारी चीज़ें, छोटे बच्चे हैं. फिर फोर्स बिहाइंड द फोर्सेस जैसी चीज़ आ जाती है. आप सोचिए इतना बड़ा कॉज, लोगों के फीडबैक आने लगे कि वॉर विडोज़ के बारे में एक चेतना फैलने लगी, वीर नारियों के बारे में. फिर बलिदान आ गई, वो अक्वायर भी हो जाती है. मैं इतने मंच पे, मुझे इसरो बुलाया गया था फोर्स बिहाइंड की फोर्सेस की कहानी, उन्होंने कहा कि आप विमेन एम्पावरमेंट पे हमको लेक्चर दो. वो मेरे हाथ कांप रहे थे. मैंने कहा कि आप तो सबसे एम्पावर्ड है, मैं आपको क्या एम्पावरमेंट में कहूँगी. बट उन्होंने कहा नहीं, हम सुनना चाहते हैं आपसे कहानी. सो उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि शब्दों की ताकत क्या होती है, लेखनी की ताकत क्या होती है. वो चाहे आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, आर्ट लिटरेचर आपके दिलों को छूता है. सो डेस्टिनी, बस मैम मैं कहूँगी हो गया सब. Heartiest congratulations, ma'am. बहुत शुक्रिया मैम. बच्चों में से कोई भी नहीं कुछ पूछना चाहता? जी. Yes, we see one. टॉपिक से हट के थोड़ा सा सवाल पूछना चाहता हूँ. आपका कम्युनिकेशन स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगा, जिस तरीके से आप कम्युनिकेट कर रहे हैं. एक मेरे ख्याल से 15 दिन पहले या महीने भर पहले भी मैं यहाँ पे आया था, बहुत बढ़िया टॉपिक था, शिवाजी महाराज के ऊपर का ये था. पुरंदरे जी आए थे यहाँ पे, सचिन और पुरंदरे जी थे. शिवाजी महाराज को अंग्रेजी में हम लोगों ने सुना, टॉपिक बहुत अच्छा था, उन्होंने लिखा भी बहुत अच्छा है, मगर आपने जिस ढंग से इसको पेश किया तो मुझे थोड़ा सा दिमाग में सवाल आ रहा है कि जस्ट एट द एज ऑफ 38 यू हैव डन, यानी बहुत ग्लैमरस चीज़ें भी आप करते हैं, एडवेंचर या ये वो सब चीज़ करते हैं, आप अच्छी जगह से पढ़े लिखे भी हैं, बहुत अच्छी जगह पे काम भी किया हुआ है आपने बताया, फिर भी हिंदी में कम्युनिकेट करने का कोई स्पेशल पर्पज़ है या मेरा देश बदल रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया इस सवाल के लिए, बहुत प्यारा सवाल पूछा है आपने. देखिए हम जो बातें करते हैं ना वो हमारे बारे में रिफ्लेक्ट करती हैं कि हम कौन हैं, कहाँ से आते हैं. सो जब आप पब्लिक लाइन में आ जाते हैं, पब्लिक स्पीकिंग, राइटिंग इज़ ऑल्सो अबाउट पब्लिक स्पीकिंग. लोग आपसे वो कहानियाँ जानना चाहते हैं, वो जर्नी पूछना चाहते हैं, तो यू ओ दिस ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रेजेंट द राइट थिंग्स इन राइट मैनर, पहली चीज़. दूसरी, जो आप पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड चीज़ें पूछ रही हैं, हिंदी की बात कह रहे हैं, ये ओवर द ईयर आता है. मैं एक प्रो स्पीकर हूँ. कई, मुझे गिनती नहीं है कि मैं कितने इवेंट्स कर चुकी हूँ, कितनी जगह, कितने मंचों पे मैं बातचीत कर चुकी हूँ. सो ओवर द टाइम आता है. पब्लिक स्पीकिंग इज़ एन आर्ट. किस भाषा में, इंग्लिश में भी बहुत फराटेदार बोलती हूँ, बट मुझे पता होता है किस ऑडियंस के साथ किस तरह से, किस भाषा में बात करनी है, और मैं सीख रही हूँ. हिंदी अथाह है, मतलब आप हिंदी के जो शब्दों में जो भारीपन होता है, जो गंभीरता होती है, जो खूबसूरती होती है, वो मुझे लगता है कि शायद ही किसी, उर्दू में नज़ाकत होती है. इंग्लिश बोल चाल की भाषा हो गई आज के डेट में, बट जो शब्दों की गंभीरता, क्योंकि मैं गंभीर किताबें लेके आ रही हूँ, वो हिंदी भाषा से ही आती हैं. और पब्लिक स्पीकिंग कम्स विथ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, लॉट ऑफ रीडिंग हैज़ गॉन इन टू व्हाट आई एम स्पीकिंग. बहुत पढ़ती हूँ मैं, बहुत डिसिप्लिन है मेरी लाइफ में, बहुत लिखती हूँ मैं. पब्लिक स्पीकिंग, काफ़ी डिबेट पैनलिस्ट भी मैं रह चुकी हूँ. अब मैंने छोड़ दिया है नेशनल मीडिया पे डिबेट पैनल जाना, बिकॉज वो क्रिएटिव एनर्जीज के साथ वो मैसअप करते हैं, बहुत ही अनकंस्ट्रक्टिव नेगेटिव एनवायरनमेंट होता है.
तो बहुत सारे जितने चैलेंजेस को भी आप लाइफ में फेस करेंगे ना, वो कॉन्फिडेंस, वो नॉलेज आपकी आत्मा में आ जाता है. सो जब आप स्टेज पे जाते हैं, यू कैन नॉट मैन्यूपुलेट एनीथिंग. मतलब आप ऐसा नहीं कि आप सोच के आएंगे मैं ये बोलूँगा ये होगा, नहीं होता है. सो एक्सपीरियंस के साथ, डिसिप्लिन के साथ, नॉलेज के साथ ये चीज़ें चलती हैं. जी मैम, हेलो, I've just come here for the first time. और एक्चुअली आप मतलब जब भी अभी तक आप जब बोल रहे थे तो मैं सुन रही थी. एंड मेरा जैसे एक सवाल है मैम कि आपने जब बताया कि आप मिलिट्री ऑथर, आप मतलब डिफेंस के बारे में लिखते हो, तो मैम मैं रिसेंटली एक बुक पढ़ रही थी 1946 रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी. तो मतलब जो 1947 इंडिपेंडेंस के पहले एक जो इंडियन नेवी ने जो म्यूटिनी की थी, जिससे मतलब लोग बोलते हैं कि जिसकी वजह से मेन कॉज है, जिसकी वजह से लाइक एक्चुअली इंडिया को फ्रीडम मिला. तो उस बुक में मैम सर्टन सेक्शंस में जो इंडियन नेवी है उसने जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो कंट्रीब्यूशन किया था, उन्होंने मतलब जो ऑथर है प्रमोद कुमार, आई थिंक हिज नेम इज समथिंग, वैसा ही कुछ नाम है, आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट. तो उन्होंने कहा है कि मतलब रॉयल इंडियन नेवी ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है वो मतलब इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो वो उस बुक में नहीं लिख पाए, बट एक्चुअली वो ऐसी चीज़ है जो लोगों को पता होनी चाहिए ऐसे. सो आई एम जस्ट वंडरिंग कि आप मे बी इस बारे में सोच सकते हैं क्या कभी, बिकॉज आई वुड रियली लाइक टू नो अबाउट लाइक द कंट्रीब्यूशन एंड एवरीथिंग. देखिए, अभी तक इस मंच पे बैठे बैठे मैं 2 आइडियाज़ आ गए हैं किस तरह की किताबें लिखनी चाहिए. बट आपने अच्छा कहा है, आपने भी अच्छा कहा है. मैंने बताया कि जो आप कहते हैं वो आपको रिफ्लेक्ट करता है, बट आपको समझना पड़ेगा कि मैं जिस स्केल की किताबें लिख रही हूँ, मैंने बताया मेरे पीछे 200 लोगों की टीम होती है. जो ये कहानियाँ आप पढ़ रहे हैं ना और आपको पहले पन्ने से दूसरे पन्ने पे जा रहे हैं, उसके पीछे बहुत ही मेहनत है. मैं वो चीज़ें नहीं लिख सकती जिनके बारे में मुझे आइडिया नहीं है. जैसे अगर अभी आप मुझे कहिए, म्यूटिनी तो फिर भी मेरे फील्ड से रिलेटेड है, कि IIM पे लिख दूँ, चेतन भगत जैसे जो लिख रहे हैं, या IIT पे लिख दूँ, मैं नहीं लिख पाऊँगी, बिकॉज मैंने उस ज़िंदगी को नहीं जिया है. अब ये जो कहानियाँ हैं ये मेरी कंटेम्प्रेरी कहानियाँ हैं. मैं मिलिट्री बैकग्राउंड से, मेरे आसपास की कहानियाँ हैं, तो शब्दों की समझ, भावनाओं की गहराई, उसको मैं महसूस करके लिख पाती हूँ. तो अभी 1947 म्यूटिनी, इट्स अ गुड आइडिया. अगेन आपका भी आइडिया अच्छा था. कभी सोचूंगी मैं ज़रूर इस पे. जी, एक वो बच्ची बार बार हाथ उठा रही है, प्लीज़ आप उनको माइक दीजिए. और वहाँ पीछे बच्चे. जी, Good evening, ma'am. I'm Prahari Anusha Srivastav, and my question to you is that, as you mentioned before, that your creative energies get hindered because of public talks and events and interviews and stuff like that. So how do you cope up with that? Because when something actually gets hindered, getting back on track is a very difficult process. So how do you do, if you can advise something on that? ये बहुत ही गंभीर क्वेश्चन पूछा है बच्चे ने. बिकॉज सीरियसली जो भी आप लोग जितना काम कर रहे हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं, आप समझेंगे, या जो घर में जो होम मेकर्स हैं, यू गेट ड्रेन्ड एट द एंड ऑफ द डे एंड यू डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग एट ऑल. सो मैं तो बिल्कुल पब्लिक लाइफ में हूँ, पब्लिक राइटिंग कर रही हूँ और बहुत गंभीर किताबें लिख रही हूँ, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं. सीरियसली आई टोल्ड यू दैट माई स्टोरीज टेक टोल ऑन मी, आई गेट ड्रेन्ड एंड ऑल. सो अभी तो मैं इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हूँ. मैंने ये भी बताया कि मैं ज़्यादा इवेंट नहीं कर रही हूँ, मैं कट ऑफ कर रही हूँ इस साल से. सो आई प्रोटेक्ट माई एनर्जीज अ लॉट. एंड हाउ डू आई डू दैट? लाइक एनर्जीज आर एवरीथिंग. आर थॉट्स आर एनर्जीज. एनर्जीज क्या है? हमारी थॉट ही हमारी एनर्जी है और हमारी थॉट ही हमारी पावर है. हम जैसे न्यूटन का लॉ है ना, ग्रेविटेशन का, कि जो आप भेजते हैं वही आपको वापस अट्रैक्ट करते हैं. ठीक है ना? वो पेड़ से जो सेब गिरा था उसका बेसिक जो मोटो है यही है. सो वॉट वी थ्रो आउट, वॉट वी से कम्स बैक टू अस. एंड मेरी जो लाइफ थी, मैंने बताया कि मैं बहुत ही नॉर्मल, रेगुलर कहूँगी, नॉर्मल क्या, रेगुलर होम मेकर थी. मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसी किताबें लेके आऊँगी जो इतनी लोगों की चेतना बढ़ाने का काम करेंगी और बड़े स्केल पे जाएंगी. मुझे लगता जो मेरी सारी किताबें हैं ना, वो 4-5 शब्दों के आसपास घूमती हैं. होप, करेज, वैलर, लव. बिकॉज प्यार एक बहुत, इनफैक्ट इस प्लैनेट की सबसे पावरफुल इमोशन है. ये रिक्रिएशन की पावर है. ग्रैटिट्यूड. सो मैं अपने आप को
एलिवेटेड इमोशन से आज की डेट में मैं आपको बहुत ही बड़ा सीक्रेट बता रही हूँ. इट रियली वर्क्स, इट हैज़ हेल्प मी आउट. मुझे लगता है मेरी किस्मत भी बदल गई है, मुझे बड़े अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट मिल रहे हैं. अभी मेरी किताबें बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर्स के पास घूम रही, मैं अभी बता रही हूँ आपको. तो जो भी चाह रही हूँ हो जा रहा है बेसिकली. सो ये कामनेस ऑफ द माइंड से आया. मैं मेडिटेशन करती हूँ, एंड मेडिटेशन इज़ नथिंग बट बेसिकली एक्सरसाइज ऑफ माइंड. आप समझिए, आपको काम रहने में, शांत रहने में हेल्प आउट करता है. और मैंने ओवर द टाइम ये भी सीखा है कि अगर आप दुखी हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, स्ट्रेस में हैं, तो कोई दूसरा आपको नहीं लिफ्ट करेगा. आपका हस्बैंड, आपके बच्चे, आपका दोस्त, ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप खुद को कितना ठीक रखते हैं. आप खुद को ठीक रखिए, बाकी छोड़ दीजिए, एवरीथिंग विल फॉल इनटू इट्स प्लेस. सो मुझे जब स्ट्रेस होता है या मैं डिप्रेस या ड्रेन हो जाती हूँ, आई गो आउट इन नेचर. नेचर में ग्रीनरी के पास ट्रीज में नेगेटिव एनर्जीज एब्जर्व करने की ताकत होती है. ब्लू वाटर इज़ गुड फॉर माइंड. सो ये छोटी छोटी टेक्निक्स से मैं करती हूँ. मैं जिम जाती हूँ, मैं वेट लिफ्टिंग करती हूँ. तो आई ब्रेक माई बॉडी एंड आई एग्जॉस्ट माई सेल्फ सो मच इन टू कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़, जैसे जिम जाना. कार्डियो इज़ वेरी गुड फॉर ब्रेन. आप वॉक करिए, आप रन करिए. आपको दुखी फील हो रहा है, यू गो आउट. वाई आर यू इनसाइड द हाउस? सो दीज आर द टेक्निक्स. मैं फिजिकल टेक्निक्स बता रही हूँ जो मैं करती हूँ अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट रखने. मैं आई एम ए वेरी काम पर्सन. मुझे गुस्सा नहीं आता आज की डेट में, कभी आता भी है तो आई नो हाउ टू हैंडल दैट. तो मैंने अपनी सराउंडिंग, अपनी ऑरा को बहुत ही पॉजिटिव, मैं कॉन्शियसली प्रैक्टिस कर रही हूँ. हैप्पीनेस इज़ अ प्रैक्टिस. ये नेचर नहीं है और ये आपका कैरेक्टर भी नहीं है. इट्स अ प्रैक्टिस. जैसे बैडमिंटन खेलने की प्रैक्टिस होती है ना, मैं खुद को खुश रखने की कोशिश करती हूँ. उन लोगों से जो नेगेटिव लोग हैं या मुझे पुल डाउन करने, हम सबकी ज़िंदगी में ऐसे कुछ लोग मिल जाएंगे, कुछ ऐसी चीज़, उनको मैं कभी समझाने की कोशिश नहीं करती. आपने कहा, मैं मान लें आप ही सही हो, जो मेरी पर्सनल लाइफ की बात कर रही हूँ, मैं दूर हो जाती हूँ, मैं कट ऑफ कर लेती हूँ अपने आप को. नेगेटिव लोगों से दूर रखती हूँ, कंस्ट्रक्टिव कामों में इंगेज रखती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, ध्यान में 1 घंटे करती हूँ. ये जैसे माउंटेन्स पे जा रही हूँ या स्की कोर्स अभी जा रही हूँ गुलमर्ग में. मेरी मदर कह रही थी कि पूरी दुनिया बीचेस पे जा रही है तो तू जा रही है वहाँ जहाँ सबसे ज़्यादा ठंड है. मेहनत होती है बहुत ज़्यादा, पर मैं नेचर से कनेक्ट कर रही हूँ. और एक चीज़ लास्ट में आपको ये भी बताती हूँ कि कहा जाता है कि हर इंसान की ज़िंदगी में दुख का कोटा होता है. हम इस लाइफ टाइम में अपने दुख का कोटा लेके आते हैं. सो बहुत आज की डेट में हमारी ज़िंदगी बहुत कंफर्टेबल हो गई है. वो भी बहुत बड़ा रीज़न है हमारे दुखों का, हमारे ड्रेन्ड एंड एग्जॉस्टेड लाइफ का. हम कुछ भी नहीं कर रहे ना, हम एवरेस्ट पे नहीं चढ़ रहे हैं, बट घर में बैठे बैठे हम ड्रेन्ड आउट हो जाते हैं टीवी और मोबाइल्स देख करके. इनकी रेज अच्छी नहीं होती हैं. क्या हो रहा है कि हम बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल बना ले रहे हैं अपनी ज़िंदगी को. तो मैं कॉन्शियसली इस कंफर्ट लेवल को तोड़ने का कुछ कष्ट खुद ऑप्ट करती हूँ. सेज कि अगर आप कुछ कष्ट खुद ऑप्ट करोगे, जैसे ट्रेकिंग कर ली या रनिंग कर लिया या जो भी, तो जो भगवान अगर जो आपको कलेक्टिव देता है ना, क्योंकि आपने ऑप्ट नहीं किया साल भर, 2 साल, 5 साल, तो वो डेथ या मिजरीज के रूप में होता है. बिकॉज मैं बहुत सारे लोगों से भी मिलती जा रही हूँ, बहुत बड़े बड़े अच्छे लोग हैं, थिंकर्स, फिलोसफर्स, एंड काफ़ी पढ़ती लिखती हूँ, रिसर्च कर रही हूँ, लाइफ की रिसर्च कर रही हूँ मैं. सो इन चीज़ों पे काफ़ी भरोसा हो गया, मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है. तो आई एम वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट माई थाट्स. नेगेटिव बातें मैं निकाल नहीं रही हूँ. डिबेट पैनल से मैंने कट ऑफ कर लिया बिकॉज दे अफेक्ट माई ओन लक, नोबडी एल्स. So try doing this. Just stay positive. Surround yourself with elevated emotions. Love, happiness, gratitude, empathy, jealousy. लोगों को pull down करना, उससे दूर हटिए, खुद को cut off करिए. एंड ध्यान कीजिए, एक्सरसाइज वगैरह जैसी जो एड्रेनलिन बूस्टिंग एक्टिविटीज़ हैं उसमें इन्वॉल्व करिए. जस्ट मेक वेरी वेरी कंस्ट्रक्टिव लाइफ आउट ऑफ यू. लीव अदर्स. किसी भी स्ट्रेटा से आप बिलोंग करते हैं, दैट इज़ गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ डिफरेंस. We are taking last 2 questions. Hello. And someone at the back, they want to, the student there. Good evening, ma'am. I am Prahari Sampada Shete. Ma'am, first of all, I am greatly honored to interact with you. Ma'am, as you have mentioned about your amazing books, I would make sure to read each one of them. Ma'am, we would also love to read the stories and the sacrifices made by the women in uniform, the hardships and the challenges they face. Thank you, ma'am. Absolutely. एक कहानी लिखी है मैंने फोर्स बिहाइंड द फोर्सेस में, मेजर प्रिया सेमवाल की. वो भारतीय सेना के जवान की पहली पत्नी है जो कि अधिकारी बनी. सो वो तो खैर मेरा फोटे है जो आप मुझे बता रहे हैं. 3 कहानियों के आइडियाज़ आ गए हैं मुझे, देखिए.
तो ये तो खैर मैं लिखती रहती हूँ और लिखी है मैंने कहानी, बट ये बहुत ही अट्रैक्टिव आइडिया है और इनफैक्ट मैं इस पर सोच भी रही हूँ. एक वो बच्चा पीछे बार बार हाथ उठा रहा है, प्लीज़ आप उनको माइक दीजिए. Last question for जी. this evening. जैन मैम, मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने 200 की फैमिली कैसे बनाई? फैमिली बनाना बहुत मुश्किल है और आप इतनी बड़ी ऑथर हैं, तो आप अपने बचपन में क्या अपने आप को कोसती थी या फिर मतलब आप इतने अच्छा मतलब राइटिंग कर रहे हैं आज, तो पहले कैसे थे आप? अपने आप को कम तो नहीं महसूस करते थे या फिर बहुत अच्छे थे अपनी लाइफ में? नहीं, मैं अगर आज इतनी आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है बच्चे, बैठ जाइए प्लीज़. देखिए, अगर आज मैं इतनी कम उम्र में आपके सामने कुछ बात करने का साहस रख रही हूँ या कॉन्फिडेंस रख रही हूँ, वो इसलिए आया है कि मैंने हार्डशिप्स बहुत देखी हैं लाइफ में, बट मैं टूटी नहीं हूँ, बिखरी नहीं हूँ, चलती रही हूँ. छोटे छोटे स्टेप्स की ताकत का हम सब, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी जी हों या फिर आप किसी बड़े अभिनेता का नाम ले लीजिए, साइंटिस्ट का नाम ले लीजिए, अगर हम इंसान पैदा हुए हैं तो हमारी लाइफ में सुख दुख का ग्राफ बराबर होगा. हर सुख के बाद हर दुख आएगा, दुख के बाद सुख आएगा, बट किस माइंडसेट के साथ हम इसको डील करते हैं बहुत फ़र्क पड़ जाता है. सो मैं आज अगर एक सोच है, एक आइडियोलॉजी है जिसको 4 लोग सुन रहे हैं, वो उन अनुभवों से आया है जो मैंने लाइफ में, मेरी मदर कैंसर सर्वाइवर रही हैं, लाइफ में मैंने बहुत चैलेंजेस देखे हैं. रोज़ की ज़िंदगी में मेरे आज भी जितना मेरा लेवल ऊपर हो रहा है, मेरे चैलेंजेस का लेवल भी उतना हाई होता चला जाता है. तो मुझे मेरी स्पिरिचुअल एक हीलर भी हैं, मैं बहुत कनेक्टेड रहती हूँ इन स्पिरिचुअलिटी से, अपने रूट्स से बहुत जुड़ी हुई. मैं आई एम अ मॉडर्न वुमन, बट मैं रूटेड हूँ. उन्होंने हिंदी भाषा की बहुत ही प्यारा सवाल पूछा था. सो मैं रूटेड हूँ अपने कल्चर से, बहुत प्राउड हूँ अपने बैकग्राउंड की, और मुझे मेरा वैलिडेशन पॉइंट आज की डेट में सिर्फ मैं हूँ. मतलब मुझे आप कहेंगे कि आप अच्छे हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, मुझे कहेंगे आप बुरे हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा. सो ये ओवर द टाइम आया है, उन अनुभवों से आया है, और मैंने अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखा. मैंने लोगों में कमियां निकालने की जगह खुद की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए मेहनत किया. अगर मैं आपको ये बता रही हूँ, मेहनत लगती है सुबह 5 बजे उठने में. अभी पंजाब में ठंड इतनी ज़्यादा है, मैं बता नहीं सकती. खिड़की के बाहर कुहासा होता है, मैं 5 बजे आज भी उठती हूँ. बहुत मेहनत होती है. घोड़े की बात हम मजाक में कर रहे थे, गिरती हूँ, चोट लगती है, उठा नहीं जाता है. बीएमसी की बात करी, मैं एक अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ. सिल्वर स्पून लेके तो मैं पैदा हुई हूँ, मुझे ज़रूरत भी नहीं है कुछ करने की. घर में कई बार प्यार से लोग कह भी देते हैं कि मत करो, तुम्हें क्या ज़रूरत है, जैसे वो कष्टों की बात कर रहे थे, बट मैं करती हूँ बिकॉज आज नहीं तो कल, क्योंकि मैंने दुखों की भी बात की, अगर मैं अपना कष्ट ऑप्ट नहीं करूँगी और अच्छी माइंडसेट के साथ नहीं ऑप्ट करूँगी, कल को मुझे और परेशानियाँ, मिजरीज आ जाएंगी, कोई डिजीज़ आ जाएगा या कुछ मानसिक तनाव आ जाएगा. तो मैं बहुत कॉन्शियस हूँ अपनी लाइफ को लेके और पॉजिटिविटी प्रैक्टिस कर रही हूँ, और अनुभवों ने मुझे काफ़ी सिखाया है. टूटती नहीं हूँ, मैं रेजिलियंस हूँ, और मेरा लाइफ का एक मोटो है, ग्रो, ग्लो, शाइन लाइक अ डायमंड. मुझे फ़र्क नहीं पड़ता. ये एनसीसी क्लैप है, आई नो दिस, बहुत ही प्यारी क्लैप होती है. ग्लो, आप लोगों को बता रही हूँ जो बच्चे हैं, ग्लो नो मैटर व्हाट पीपल टॉक अबाउट यू. देखिए, मैं पब्लिक लाइफ में हूँ, मेरे बारे में कोई भी कुछ कहने की ताकत रखता है. 12 साल का बच्चा भी, क्योंकि मैं एक पॉपुलर ऑथर हूँ, मास ऑथर हूँ, लोग देश भर में जानते हैं मुझे, तो 12 साल का बच्चा भी है ना, अगर उसको मम्मी ने उसकी मारा है तो वो आएगा कि यार स्वप्निल पांडे की शक्ल पसंद नहीं है मुझे. ऐसा होता है मेरे साथ. या एक 80 ईयर्स ओल्ड कोई हो सकते हैं और उनकी वाइफ से उनको डांट पड़ी होगी, दे विल कम एंड से कि यार ये काम ठीक नहीं करती है, बिकॉज दे आर फ्री टू थ्रो दैट ऑन मी, and but it does not take toll on me. Glow. At the end of the day, I ensure that no matter what people are saying about me, I will only glow. I will only throw my light in this world in the most positive manner. Grow. I want to enhance as a person. इसके बाद जब मेरा नेक्स्ट लेवल में, हम बॉलीवुड्स की बात कर रहे हैं क्योंकि वो नेक्स्ट लेवल होता है, पब्लिशिंग के एपिटोम पे हूँ मैं, सब अचीव कर लिया, हार्पर कॉलिंस, पेंगुइन इंडिया, सब कुछ देख लिया मैंने. सो मैं यहाँ स्टैगनेंट नहीं हूँ, मैं कंफर्ट जोन में रहना पसंद नहीं करती हूँ. आई ऑलवेज लाइक टू इन्हांस माई लिमिट्स. मुझे अपनी लिमिट्स को बढ़ाना बहुत पसंद, और दिस हैज़ हेल्प मी आउट. सो आई एम टू ग्रो एज अ पर्सन, आई एम टू इन्हांस एज अ पर्सन. एज अ मदर मैं ग्रो करना चाहती हूँ, एज अ वाइफ मैं ग्रो करना चाहती हूँ, एज एन ऑथर, एज अ ह्यूमन बीइंग आई वांट टू ग्रो एंड शाइन लाइक अ डायमंड. नो मैटर व्हाट, मेरा वैलिडेशन पॉइंट मैं हूँ. मुझे पता है कि आई एम अ डायमंड एंड आई एम हियर टू शाइन
शाइन थ्रू द डार्कनेस. और यही थिंकिंग आप सबको रखनी चाहिए, बिकॉज ये सारी चीज़ें आप पे भी एप्लीकेबल है. हम सब यूनिक है, हम सबकी अपनी यूनिक वैल्यू है. फाइंड इट, बिलीव इन योर सेल्फ, डू दिस. जी, थैंक यू. Ma'am. Thank you so much. I would like to inform all of you that Swapnil ma'am's books are available here for sale, और MRP पे 100 रुपीज़ का डिस्काउंट है, तो प्लीज़ आप बुक्स खरीदिए. गेट देम साइंड फ्रॉम स्वप्निल मैम. शी इज़ हियर फॉर सम मोर टाइम, एंड आई एम सॉरी वी कांट टेक ऑल द क्वेश्चंस, लेकिन आपको अगर कोई क्वेश्चंस है तो आप उन्हें पर्सनली जाकर उनसे पूछ सकते हैं. वो यहाँ कुछ समय और हमारे साथ बिताएंगी. May I request Muskan from our VLF team to present the formal vote of thanks and also make some important announcements regarding Vidarbha Literary Festival 2024. अच्छा, before Muskan could say, I had bought a book with me, जो मैं हर इवेंट्स में जहाँ भी जाती हूँ ये 2 चीज़ें तो मैं करती हूँ, क्योंकि अब मैं सबको बुक नहीं गिफ्ट कर सकती. किताबें अभी जिनको लेनी है प्लीज़ ले लीजिएगा, किताबें आपको बाद में भी मिल जाएंगी, बट ऑथर साइंड कॉपी की बहुत डिमांड होती है. लोग हमसे बहुत दूर दूर से मिलाते हैं, तो मैं आई हूँ तो मैं अभी आपकी कॉपी साइन कर दूँगी. दूसरा, मैं मैम को बुलाना चाहूँगी स्टेज पे. बहुत ही प्यारा, बहुत ही सरल, बट बहुत ही उन्होंने सवाल सबके बहुत अच्छे थे. सवाल को कैटेगराइज नहीं कर सकते, बट मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैं उनको साइंड कॉपी I'd like to give. I would like to tell you that her name is Padmini Zog and she is a renowned yoga teacher from our city. देखिए, मैंने आप लोगों के लिए काफ़ी बातें की. एक चीज़ आप मेरे लिए कर दीजिए, इसके बिना मेरा सेशन एंड नहीं होता. उसके बाद मैं आप लोग जैसा आप कहेंगे. एक बार हम भारत माता की जय बोलते हैं. जिस मिट्टी से हैं तो ये हम करते हैं, मेरा दिल नहीं भरेगा. तो मैं बोलती हूँ, मेरे पीछे बोलिए. हम लेट जस्ट स्टैंड अप फ्रॉम आवर सीट्स प्लीज़. ये एनसीसी के बच्चे हैं, इनके नारे देखिएगा आप अभी. भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की. Thank you. Thank you, Asavari, for a wonderful job you have done today. On behalf of VLF, I would like to thank our partners for their support, some of whom are with us since inception. Our publishers for suggesting some of the great work under non-fiction category. Thank you, Persistence, for providing us with the venue. We would like to thank General S.K. Vidyarthi, GOC of Umang sub-area for his continued support to VLF. Also, we deeply appreciate the support extended by Group Captain Kushal Vyas, Group Commander and Colonel Naveen Rai, Training Officer of NCC Group Headquarters, Nagpur. We would like to recognize the presence of Shivali Deshpande of Prahar for her support. Thank you, VLF committee member, action group and volunteers for doing a wonderful job. And a big thank you to all of you. Your presence is what made this evening special. Now it's time for some announcement. The first is reading bingo. So this is a competition going on since past 12 weeks. And it has 2 big ticket prizes. The first one is a crossword vouchers worth rupees 10,000. And a second prize of 5,000, through which you can buy books from Crosswords. Rules are very simple. The first rule is scan this code, register yourself, read the books related to the prompts that will be revealed. The 12 prompts have already been revealed, 13 will be revealed now. And you have to click a picture while you are reading the book. The cover page should be visible. Here are the detailed rules. You have to upload your pictures along with the book on Instagram and use these hashtags. And now it's time for a reveal of this week. Sorry. So you have to read a book on Indian Armed Forces. And the best book available with us is Balidan
You can buy this, click a picture while you are reading the book, and post it on Instagram. It's very easy. And now it's time for big reveal of the main events, authors and their books. So mark your calendars for January 27th and 28th, 2024. And we have a wonderful lineup. The first one is Admen Madmen, an ultimate comic memoir to capture your heart and mind and tickle your funny bone by Prahlad Kakkar. Next is Banned and Censored by Devika Sethi. It's a book about 100 texts that British Empire banned, censored or deemed seditious. Next in line is Basu Chatterjee by Anirudh Bhattacharya. A behind-the-scene look at Basu Chatterjee's most loved films. Next is Behold by Jerry Pinto. These are hymns of Tukaram translated by Jerry Pinto. He will also be talking about his book H-Bomb, where H stands for Helen. And the next is Being the Change by Barka Mathur. Stories of social justice warriors with some astonishing stories of Vidarbha. Chemical Khichdi by Aparna Parimal Raje. Aparna has a Nagpur Connect, which you can discover when you meet her in the event. It's a part memoir, part reportage, and part self-help guide with 7 therapies for mental health conditions. Next in line is Quoting Hindustan, written by Madhur Gupta, who himself is a trained dancer, and he has talked about such women in his book. Next is Homi Baba by Bakhtar Dadaboy. It's a biography of the theoretical physicist who founded India's nuclear program. And a most interesting, Dethroned by John, which will be moderated by Sachinji. This book talks about how 550 princely states were made part of free India within 3 weeks of deciding that India will be an independent state. And next is those magnificent women and their flying machine, ISRO's mission to Mars by Minnie Ved. For women in science, the sky is not the limit. Mid-Wicket Tales by Giri and Raghu. This book is for all genuine lovers of cricket with rare and interesting anecdotes. Just Aspire by Ajay Chaudhary, who is co-founder of HCL, will share timeless lesson on entrepreneurship, technology, and future. Missing in Action by Chandrasutta Dogra. India's soldiers who went missing in enemy territory during Indo-Pak War of 1965 and 1971. Indic Saints by Amardeep Singh. Remnants of Separation by Achal Malhotra. This book is an alternative history of the partition, the first and the only one told through material memory that makes the event tangible even 7 decades later. The Broken Script by Swapna Liddle. The story of people of Delhi during 1803 and 1857. When Ardh Satya Met Himmatwala by Avijit Ghosh. It talks about Hindi cinema during 1980s. Maverick Effect. What is that? Maverick Effect by Harish Mehta, the inside story of India's IT revolution. It went missing. Yes, so Maverick Effect talks about the inside story of India's IT revolution. The Ultimate Goal by Vikram Sood, who is former chief of India's intelligence agency, that is RAW. He will talk about how narratives turn into perceptions. The Winning Culture by Major General Neeraj Bali talks about lessons from Indian Army to transform business and organizational culture. The Pashtuns by Tilak Devasher. The Pashtun are Pakistani's largest ethnic minority. They speak Pashto as a language and live according to Pashtunwali, a social code that value honor, hospitality, and revenge. They live in a strategic area in Pakistan on the border of Afghanistan known as FATA, which is called as the most dangerous place in the world by America. This book is about that. And this is not a complete list. The complete schedule will be uploaded on our website very soon. All the details will be given there. Please do attend. Thank you very much.
Thank you very much for being here.